یہ پیغام برادر ولیم میرین برینم کی جانب سے بنیادی طور پر انگلش میں ہفتے کی شام 20 جون 1964 میونسپل آڈیٹوریم ٹاپیکا کنساس USA میں دیا گیا۔ آئے مقدس مرکز کی انجیل میں سے تلاوت کرتے ہیں۔ مجھے یقین ہے میں نے 10ویں باب کی 46ویں آیت کو پڑھنے کے لیے چنا ہے اور اس پر تھوڑی دیر کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آئیں جب کہ ہم تلاوت کرتے ہیں تو کلام مقدس کی عزت میں کھڑے ہو جائیں، کیونکہ کلام خدا ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں، بس آپ کھڑے ہو جائیں اور ویسی عزت کریں جو آپ پر کرنا واجب ہے۔ جب پرچم لہرایا جاتا ہے تو آپ سلامی دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر خدا کے کلام کے لیے کیوں نہیں جب کہ یہ پڑھا جاتا ہے۔ اور وہ یریحو میں آئے، اور جب وہ اور اس کے شاگرد اور ایک بڑی بھیڑ یریحو سے نکلتی تھی تو تمائی کا بیٹا برتمائی اندھا فقیر راہ کے کنارے پر بیٹھا ہوا تھا، اور یہ سن کر کہ یسوع ناصری ہے چلا چلا کر کہنے لگا، اے ابن داؤد، اے یسوع مجھ پر رحم فرما۔ اور بہتوں نے اسے ڈانٹا کہ چپ رہے، مگر وہ اور بھی زیادہ چلایا کہ اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ یسوع نے کھڑے ہو کر کہا، اسے بلاؤ۔ بس اس نے اس اندھے فقیر کو یہ کہہ کر بلایا کہ خاطر جمع رکھ، اٹھ، وہ تجھے بلاتا ہے۔ وہ اپنا کپڑا پھینک کر اچھل پڑا اور یسوع کے پاس آیا۔ یسوع نے اس سے کہا، تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اندھے نے اس سے کہا، اے ربونی، یہ کہ میں بینا ہو جاؤں۔ یسوع نے اس سے کہا، جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا۔ وہ فی الفور بینا ہو گیا اور راہ میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ آئے ہم دعا کرتے ہیں، عظیم پاک روح آج رات اس تمثیل میں موجود کلام ہمارے لیے جلا دے، اور کاش ہم یہ نظارہ دوبارہ دیکھ کر جی پائیں، اور ایسا ہونے سے وہ ایمان حاصل ہو کہ خدا اب بھی زندہ ہے، اور وہ کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ ہم یہ تیرے پیارے بیٹے اور اپنے نجات دہندہ یسوع کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ آپ تشریف رکھ سکتے ہیں۔ آج رات ہمارا متن ہے، خدا کے پاس ایک مہیا کردہ برا ہے۔ اور آج صبح ہم نے ایک عظیم وقت گزارا تھا، جیسا کہ ہم نے یسوع کو یریحو میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا، اور ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں ایک چھوٹا شخص بنام زکئی تھا۔ وہ گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا اور خود کو چھپایا، کیونکہ وہ یقین نہیں کرتا تھا کہ یسوع ایک نبی تھا، لیکن اس کی بیوی یسوع کی شاگرد تھی اور وہ مسلسل اس کے لیے دعا کیا کرتی تھی۔ اور جب یسوع ٹھیک اس پیڑ کے نیچے آیا تو وہ رک گیا اور اوپر دیکھ کر اسے اس کا نام لے کر بلایا اور کہا، نیچے اتر آ، آج مجھے تیرے ساتھ تیرے گھر جانا ضرور ہے۔ اور میں سوچتا ہوں کہ آج رات بھی یہ ایک بہت ہی اچھی بات ہوگی جب کہ ہم یہاں موجود ہیں، کہ ہم بس یسوع کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ آج صبح ہم اسے اپنے ساتھ جانے کے لیے کہتے ہیں اور ہم اس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، تو آئیں اس کے ساتھ یریحو میں سے گزرنا جاری رکھتے ہیں۔ اب آج رات ہمارا منظر دوبارہ ٹھیک اسی جگہ یریحو سے کھلتا ہے، اور اب یسوع زکائی کے گھر میں ہے اور اپنا کھانا کھا رہا ہے، اور یہ اکتوبر کا ایک سرد دن ہے، اور اب یہ صبح سویرے کا ہی وقت ہے، اور ہوا پہاڑوں پر سے ہوتی ہوئی گزر رہی تھی۔ وہاں اوپر یہودیہ میں خاص طور پر سال کے اس وقت میں صبح سویرے ہی بہت ٹھنڈ ہو جاتی ہے، اور اس وقت شہر فقیروں سے بھرا تھا جیسے اب اس ملک میں ہے۔ وہ گلیوں کے کونوں پر کھڑے ہو جاتے تھے اور بھیک مانگتے تھے۔ میں ان ملکوں میں جا چکا ہوں اور سڑکیں فقیروں سے بھری ہوتی ہیں۔ انڈیا اور افریقہ اور بہت ساری جگہیں ہیں، وہاں ابھی تک فقیر ہیں۔ وہ اپاہج، لنگڑے، لاچار اور اندھے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات وہ لوگ جو ان کے لیے اور خود اپنے لیے کما نہیں سکتے تو وہ مانگتے ہیں، اور بعض اوقات وہاں بھوکے بیٹھے رہتے ہیں۔ میں انڈیا میں ان گلیوں میں سے گزرا تھا، اور میرے پاس کچھ پیسے تھے جو مجھے ان لوگوں کے وسیلے ملے تھے، اور میں نے انہیں ڈالر سے روپیوں میں تبدیل کروا لیا تھا اور بانٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر مجھے اس گلی میں سے نکلنے کے لیے انہی لوگوں کو بلانا پڑا، کیونکہ وہ بیکاری بھاگ بھاگ کر میری طرف آ رہے تھے، اور وہاں
एक लाचार खातून लेटी हुई थी जो भूख के मारे मर रही थी, और एक छोटा बच्चा था और वो इतना भूखा रह चुका था कि गोश्त उसकी हड्डियों के साथ चिपक गया था और इस कदर कमज़ोर था कि उसका ढांचा देख सकते थे। और वो बच्चा आपको दे देते हैं और कोशिश करते हैं कि आप उसे ले लें ताकि वो मर ना जाए। अगर आप इस एक को ले लेते हैं तो फिर उस दूसरे के बारे में क्या ख्याल है, और फिर उस एक और के बारे में क्या ख्याल है, उसके बारे में क्या ख्याल है। ओ मेरे खुदाया, ये अगर आप सिर्फ देख सकें कि हम जो चीज़ें यहाँ कचरे की बाल्टी में फेंक देते हैं वो तकरीबन उन लोगों का पेट भर सकती हैं। आपको एहसास नहीं है कि ये मुल्क किस कदर बेहतर है, जबकि आप पूरी दुनिया को भूख से मरते हुए देख रहे हैं और ये फ़कीरों से भरा पड़ा है। और इस दिन जैसा कि हमारी तमसील यहाँ खुलती है और यहाँ एक हम देखते हैं कि तमाम फ़कीर आम तौर पर यहाँ यरीहो में शुमाली दरवाजे पर आते जो कि यरूशलेम की तरफ है। यरीहो कोई बहुत अमीर शहर नहीं था, लेकिन यरूशलेम वो अपनी ख़ास तर्ज का अजीम शहर था। हैकल की जगह के सबब मशहूर था और तमाम दौलतमंद लोग वहाँ रहते थे और ये एक बहुत आलीशान शहर था, और जो लोग वहाँ से आते थे वो बेशक अमीर होते थे। और व्यापारी और दीगर लोग जब वो दिन के वक़्त आते थे तो ये फ़कीर अपने कपड़े लिए बैठे हुए थे। ये एक तरह का ना तहरीर करदा दस्तूर है। वो जानते थे कि किस जगह हर एक अपनी रोज़ी मांगने के लिए बैठेगा और अपने लिए खिरात लेगा, और इन्हें वहाँ जल्दी जाना पड़ता था जब व्यापारी आते थे, क्योंकि शायद वो शख्स दिन में सिर्फ एक फ़कीर की मदद कर सके और शायद निकलने से पहले अपनी जेब में सिर्फ एक ही सिक्का डाला हो। और बेशक उन दिनों फ़लस्तीन पर रोम हुकूमत कर रहा था और वहाँ की करेंसी रोमी दिनार थी। बस उनके पास एक छोटा सिक्का होता था और वो पहले फ़कीर को दे देता था, और शायद एक दिन के लिए वो इतना ही करता था। उसके पास हर एक फ़कीर को देने की गुंजाइश नहीं थी। बस जो उससे पहले मिलता था बेशक सिक्का वो हासिल कर लेता था। बस दरवाज़ा के बाहर उनकी जगह थी, इससे पहले कि शहर में लोग या सयाह दाखिल होते और वगैरह वगैरह, और वो उस शुमाली दरवाज़ा की तरफ जाते थे, ख़ास तौर पर उन सयाहों के लिए जो वहाँ से गुजरते थे। और जैसा कि हमने आज सुबह देखा था, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, सूरज अब तुलू होना शुरू हुआ था। तकरीबन 9 बज रहे थे और वहाँ एक अंधा फ़कीर था जो एक तरह से देर से पहुँचा था। उसकी रात बुरी गुजरी थी। वो अंधा था जब वो एक छोटा लड़का ही था, उसी वक़्त से अंधा था और वो देर से पहुँचा था। उस सुबह वो ज़्यादा सोया था क्योंकि पूरी रात वो ख्वाब देख रहा था कि आया वो दोबारा देख पाएगा, और वो अपने बिस्तर पर करवटें लेता रहा और उसने सोचा वो देख सकेगा, वो देख पाएगा, मगर इस मायूसी के साथ उठा कि वो नहीं देख सकता था। हकीकतन वो बस एक ख्वाब ही था, और वो चलता फिरता अपनी जगह पर पहुंच गया और वो वहां पहुंचा। अब ये तमसील है ताकि आप मेरी बात समझ सकें। वहां कोई नहीं था, वहां कुछ अजीब बात वाक़या हुई थी, जबकि तकरीबन 9:30 या 10 से ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था और वहाँ मज़ीद कोई फ़कीर नहीं थे। आमतौर पर हर शख्स अपनी जगह पर होता था। वो नहीं जानता था कि शहर में क्या वाक़या हुआ था, जिसके मुतल्लिक़ आज सुबह हमने अपने सुबह के नाश्ता पर बात की थी। यसू दरवाजे से दाखिल हो चुका था और शहर में जा चुका था, और बहुत सारे लोग वहाँ गए ताकि मालूम करें कि ये सब किस बारे में था, और फ़कीर भी चले गए थे। वो ये सब नहीं जानता था क्योंकि देर से आया था। बस हम उसे देख सकते हैं जब वो मुख्तलिफ नामों के अशखास को बुलाना शुरू करता है, और वहाँ कोई एक शख्स भी नहीं था। एक किस्म से तन्हाई जैसा मामला था। खैर, उसने सोचा शायद रोमी सिपाहियों ने इन्हें उस जगह से भगा दिया हो, या शायद कुछ और हुआ हो। बस उसने किसी का शोर ना सुन, और एक तरह से ठंड हो रही थी और वो बुरी हालत में था, और उसके कपड़े भी काफ़ी हद तक
پھٹے ہوئے تھے اور وہ ادھر ادھر ہاتھ لگا کر چل رہا تھا۔ پھر آخرکار اسے ایک بڑا پتھر ملا جو دھوپ میں پڑا ہوا تھا، شاید وہ تب دیواروں سے ٹوٹ کر نیچے گر گیا تھا جب یشوا کے دنوں میں خدا نے اس پرانی دیوار کو ہلایا تھا، اور وہ اس پتھر پر بیٹھ گیا اور گزری رات اپنے دیکھے ہوئے خواب کے متعلق سوچنے کی کوشش کر رہا تھا، اور یہ کیسی حقیقت ہوتی اگر وہ دوبارہ سے دیکھ پاتا، لیکن وہ نہیں دیکھ سکتا تھا، وہ اندھا تھا، اور اس نے ان چیزوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دی اور اس کا ذہن اس کے لڑکپن کے وقت میں چلا گیا۔ آپ جانتے ہیں مجھے ایسا کرنا اچھا لگتا ہے کہ بیٹھ جاؤں اور جو باتیں گزر گئی ہیں ان کے متعلق سوچوں، وہ اچھی باتیں اور وہ فتح یا بیان جن کو میں نے خداوند کو جیتتے دیکھا، اور ان وقتوں کے متعلق سوچوں۔ اور برتمائی جیسا کہ ہم اسے نام سے جانتے ہیں، اس رات خواب دیکھ رہا تھا کہ اس نے اپنی بینائی حاصل کر لی، اور اس نے سوچنا شروع کر دیا تھا کہ یہ کیسی حقیقت ہوگی کہ اگر وہ واقعی دیکھنا شروع کر دے۔ اس نے سوچا، میں کافی عرصے سے اندھا ہوں، میں نہیں جانتا ہوں کیسے، میں تو یہ بھی نہیں جانتا ہوں کہ دوبارہ واپس کیسے جانا ہے۔ بس اس نے کافی سال پہلے کی باتیں سوچنا شروع کر دی جب وہ ایک چھوٹا لڑکا تھا۔ وہ وہاں اس طرف پہاڑی پر کھیلا کرتا تھا، یہ وہاں کنارے پر تھی جہاں سے یردن شروع ہوتا تھا، اور وادی وہاں نیچے کی طرف تھی جہاں وہ اناج اگاتے تھے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پہاڑی کی اوپری طرف رہتا تھا، اور اسے یاد تھا کہ یہ کتنی خوبصورت تھی، اور بہار کے موسم میں ان پھولوں کو وہ بڑھتے ہوئے دیکھنا دلکش تھا، اور کیسے وہ ان کو چن کر مٹھی بھر لیتا تھا اور بیٹھ جاتا تھا اور خوبصورت نیلے آسمانوں کی طرف دیکھتا تھا۔ آپ جانتے ہیں اندھا پن ایک بہت بھیانک چیز ہے۔ جب میں ایک شخص کو اندھا دیکھتا ہوں تو مجھے اس کی فکر ہوتی، لیکن پھر بھی میں ایک بدترین اندھے پن کو جانتا ہوں، اور وہ روحانی اندھا پن ہے، جبکہ خدا نے انسان کو اسے دیکھنے کے لیے بنایا اور وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ سنسناٹی چڑیا گھر میں وہاں گیا، میں اور میری چھوٹی بیٹی وہاں گئے تھے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں کھلی فضا میں رہنے سے کتنی محبت کرتا ہوں، اور میں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک عقاب کو پکڑا تھا اور اسے پنجرے میں ڈال دیا تھا۔ وہ بیچارہ عقاب! میں نے ایک چیخ سنی اور میں نے سارا کو ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا، اور ہم اس پنجرے تک گئے، اور وہاں وہ عظیم پرندہ تھا اور خون اس کے پورے چہرے پر تھا اور اس کے پنکھ تقریباً ٹوٹ گئے تھے۔ میں نے سوچا یہ کیسا افسوسناک منظر ہے۔ وہ نیچے بیٹھ گیا اور پنجرے میں پیچھے کی طرف گیا اور ایک طرح سے بھاگتا ہوا آگے آیا اور دوبارہ اپنے پنکھ مارنا شروع کر دیے تاکہ اپنا سر پنجرے کی ایک جانب زور دے کر مار سکے، اور اپنے پنکھ اسی طرح اوپر نیچے مارتا رہا، کوشش کر رہا تھا کہ اس پنجرے سے آزاد ہو جائے، مگر اس کے پنکھ ٹوٹ رہے تھے اور وہ قید کر لیا گیا تھا، اور وہ فرش پر گر گیا اور وہاں بیٹھ گیا، اور اس نے آنکھیں گھمائیں اور اس نے اوپر نظر کی تو نیلے آسمان کو دیکھا جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں وہ آسمانی پرندہ ہے، لیکن آپ دیکھیں انسان کے کچھ سمجھداری کے کارناموں نے اسے پنجرے میں قید کر دیا تھا۔ میں وہاں کھڑا ہوا یہ دیکھ رہا تھا۔ میں نے سوچا اگر میں اسے خرید سکتا تو میں کچھ بھی دینے کے لیے تیار تھا، اور میں اسے آزاد کر دیتا، کہتا بوڑھے عقاب اڑ جا، تو یہ پسند کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، تو آزاد ہے، وہاں اڑ جا، کیونکہ تیرا تعلق وہاں سے ہے، تو اسی لیے پیدا ہوا تھا۔ میں نے سوچا یہ سب سے زیادہ افسوسناک منظر ہے جو میں نے کبھی دیکھا۔ میں وہاں کھڑا ہوا سوچ رہا تھا۔ میں نے سوچا نہیں، میں اس سے بھی زیادہ افسوسناک منظر جانتا ہوں۔ وہاں اس پہاڑ پر نظر کریں، اس آدمی کو دیکھیں جس کے ہاتھوں میں بیئر کی بوتل ہے، اور عورتیں چھوٹے کپڑے پہنے سگریٹ پکڑے ہوئے کھڑی ہیں، جبکہ وہ در حقیقت خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کے لیے پیدا ہوئے، اور وہ گناہ کے پنجرے میں ہیں جس میں شیطان نے انہیں قید کر لیا ہے۔ افسوس کی بات ہے، روحانی طور سے اندھے ہیں اور قید ہیں، شاید کسی کلیسیا سے تعلق رکھتے ہیں اور کوائر میں گاتے ہوں، مگر پھر بھی گناہ میں قید ہیں۔ اور جیسا کہ برتمائی نے
कोशिश की कि गुजरे हुए वक्त के मुतल्लक सोचे, जबकि अभी वो एक लड़का ही था, कि कैसे तकरीबन दोपहर के 2 बजे उसकी खूबसूरत यहूदी माँ उसे बुलाती। बरतमाई वो तकरीबन दोबारा उसकी आवाज़ सुन सकता था, जैसे कि वो पहाड़ों पर गूंजती थी, और वो भागा भागा जाता था और वो बाहर सहन में आ जाती और पुराने झूले वाली कुर्सी ले आती और उसे अपने बाजुओं में उठा लेती। और उसे याद था कि वो कैसे उसकी खूबसूरत आंखों में देखा करता था और उसके पास कैसी बेहतरीन माँ थी, और वो उसे झूले देती हुई सुला देती थी ताकि वो दोपहर की अपनी नींद पूरी कर पाए। और वो ये कैसे करती थी? वो उसे कहानियां सुनाती थी अपने लोगों के बारे में और खुदा के उन पुरजोर और अजीम नबियों के बारे में बताती थी जो उनके दरमियान रहे थे, और कैसे वो इनको पसंद करता था और उसे उनके बारे में सुनना बहुत पसंद था। ये बहुत ही बुरी बात है कि माएँ अपने बच्चों को टेलीविज़न पर हॉलीवुड के किसी शर्मनाक वाकया के प्रोग्राम को देखने के लिए बिठा देती, बजाय इसके कि वही काम करें और इन्हें बाइबल की कहानियां सुना। मगर वो एक हकीकी इब्रानी माँ थी और वो छोटे लड़के को ये कहानियां सुनाती। वो कहती थी और उसे बताती थी कि कैसे खुदा ने अजीम ताकतवर मूसा को मिस्र में भेजा जबकि वो वहाँ गुलाम थे। खुदा ने बाप अब्राहम से वादा किया था कि वो उन्हें छुड़ा लाएगा, और वो एक अजीम नबी पर ज़ाहिर हुआ जिसको खुदा ने उनमें से बर्पा किया था, जो मूसा कहलाता था, और वो आग के स्तून की सूरत में नीचे उतर आया और मूसा को मिस्र में भेजा, और अजीम हैरत अंगेज निशानात और जोरे बाजू से वो इन्हें बाहर निकाल लाया। और कैसे उस बियाबान में जहाँ खाने को रोटी या कुछ भी नहीं था, मगर वो ताबेदारी की साफ में चल रहे थे, और खुदा ने आसमान में से उनके लिए रोटी बरसाई थी। और मैं छोटे बरतमाई को कहते सुन सकता हूँ, माँ 1 मिनट ठहरो, खुदा ने जरूर अपने तमाम फरिश्तों को काम पर लगा दिया होगा और उसके पास आसमानों में बहुत बड़े तनूर होंगे और फरिश्ते वक्त से ज्यादा काम करते होंगे ताकि रोटी तैयार कर पाएं और उसे बरसा पाएं। नहीं बेटा, इसको समझने के लिए तुम अभी छोटे हो। आप देखें, यहोवा को ये करने की जरूरत नहीं है, यहोवा को तनूरों की जरूरत नहीं है। वो एक खालिक है, वो बस कहता है और वो बात वजूद में आ जाती। फिर हम यीशु के बारे में कहेंगे जबकि हम उसे बिल्कुल यही काम करते हुए देखते हैं। उसके मतलब जरूर कोई बात अलाही थी, उसका यहोवा से कोई तो नाता था। आजकल कुछ लोग उसे सिर्फ एक नबी या सिर्फ एक आम शख्स या एक रब्बी या अच्छा उस्ताद साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जिस्म में ज़ाहिर हुए खुदा के अलावा और कुछ नहीं था, और वहाँ जैसा कि वो उससे बातें करती और उसे बताती थी कि कैसे उस बड़े बियाबान में से वो लाए गए जो कि तब बिल्कुल यर्दन के पीछे था, और कैसे बहार के वक्त में जब अप्रैल का महीना होता है और यहूदिया के ऊपर से बर्फ पिघलना शुरू हो जाती थी और पहाड़ों का सारा पानी नीचे आ जाता था और पूरा यर्दन पानी से भर जाता था और दरिया की तह का पानी ऊपर आ जाता था, और तब ऐसा लग रहा था कि यहोवा एक नाकस रहनुमा था कि अपने लोगों को वहां उस वक्त ले आया था जब वो दरिया सैलाबी हो गया था और पूरे जोर पर था। वो कैसे कभी वहां एक पुल बना सकते थे कि उसे पार कर पाएं, और छोटा यशवा या छोटा यशवा नहीं बल्कि छोटे बरतमाई ने शायद कहा, माँ, फिर उसने ये कैसे किया? कहा, बेटा याद रखो, यहोवा अब भी खालिक है, वो बस फरमाता है और हो जाता है। खुदा को इस तरह काम करना पसंद है। जब ऐसी गड़बड़ होती है तो फिर वो खुद को खुदा साबित करता है। ठीक मौसम बहार में जबकि गर्मी के मौसम में आप वहाँ बड़ी आसानी से यर्दन पार कर सकते थे क्योंकि शहर से एक पुल बना हुआ था। हम ये जानते हैं क्योंकि वहाँ जासूस भी गए थे और दोबारा वापस आए थे। लेकिन खुदा ने तमाम वादियों को पानी से भरने दिया और फिर वो मंजर पर आया और अपनी अजीम कुव्वत को आसमान से नाजल की और उनके पार जाने के लिए एक खुश्क रास्ता तैयार कर दी। और वहाँ थोड़ा नीचे पत्थर पड़े थे जहाँ यशवा ने इन्हें इकट्ठा किया था ताकि वो यहोवा की यादगार हों कि कैसे
اس کے لوگوں کی جان بچائی گئی تھی۔ ایک اور کردار تھا جسے وہ بہت پسند کرتا تھا، وہ ایک شونیمی عورت تھی۔ اسے یہ یاد تھا اور اس کی ماں اسے شونیمی عورت اور اس کے زمانے کے عظیم نبی ایلیا کے متعلق بتاتی کہ کیسے وہ عورت اس نبی کے ساتھ اچھا سلوک کرتی تھی، حالانکہ وہ ایک اسرائیلی نہیں تھی، وہ ایک شونیمی عورت تھی۔ بس وہ یقین کرتی تھی کہ ایلیا ایک نبی تھا، خداوند کا ایک عظیم نبی تھا۔ بس جب ایک دن اس نے اپنے شوہر سے کہا کیوں نہ ہم اس کے لیے اپنے گھر کی ایک جانب ایک چھوٹا کمرہ بنوا دیں اور مہربانی سے اس کے ساتھ پیش آئیں، کیونکہ وہ ایک عظیم شخص ہے۔ اور کیسے ایک دن ایلیا اور جہازی جو اس کا خادم تھا وہاں آئے اور انہوں نے اس ساری شفقت کو دیکھا، اور اس نے جہازی سے کہا اندر جا اور پوچھ ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں، کیا میں بادشاہ یا چیف کپتان سے بات کروں؟ اس نے کہا نہیں، میں تو بس اپنے لوگوں میں رہوں گی، یہ سب ٹھیک ہے۔ لیکن جہازی نے کہا وہ بانجھ ہے، وہ بوڑھی ہے اور اس کا شوہر بھی بوڑھا ہے اور ان کے کوئی اولاد نہیں، اور کہا اور ایلیا نے ضرور ایک رویا دیکھی۔ اس نے کہا جا اسے بتا خداوند یوں فرماتا ہے کہ وہ ایک فرزند نرینہ حاصل کرے گی، اور 9 ماہ بعد ننھا لڑکا پیدا ہوا۔ ٹیپ پر خالی جگہ ہے ایڈیٹر۔ وہ بڑا ہو گیا اور وہ اپنے باپ کے ساتھ فصل کی کٹائی کے لیے کھیت میں تھا، اور اسے ضرور لو لگ گئی تھی۔ وہ روتا رہا میرا سر میرا سر، اور باپ نے اسے گھر بھیج دی، اور ماں نے اسے اپنی گود میں لے لیا اور اسے تھپکی دیتی تھی، اور شاید اس کے لیے جتنے ٹوٹکے کیے جا سکتے تھے وہ تمام کر چکی تھی، اور بیچارے بچے کی حالت بگڑتی گئی، اور آخرکار تقریباً سپہر میں وہ مر گیا۔ اور کیسے وہ ماں ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ تب باپ آیا اور تمام پڑوسی آ گئے، اور وہ رو رہے تھے اور ماتم کر رہے تھے کیونکہ بچہ مر چکا تھا، مگر اس کا ایمان اب بھی اس نبی پر تھا جو ایک عبرانی نبی تھا، اور وہ ایک غیر قوم کی تھی۔ اس نے کہا میرے لیے گدھے پر زین کس اور ڈھیل مت دینا، مجھے اس غار تک اوپر کوہ کرمل تک جانا ہے جہاں وہ نبی رہتا ہے۔ اور اس کے شوہر نے کہا نہ تو نیا چاند ہے نہ سبت، وہ وہاں نہیں ہوگا۔ اس نے کہا سب اچھا ہی ہوگا، کہا آگے بڑھ۔ اور جب ایلیا نے اسے آتے ہوئے دیکھا تو وہ اور جہازی غار میں سے باہر نکل اور وہاں کھڑے ہو کر نظر کی، اور ادھر وہ آ رہی تھی۔ اس نے کہا دیکھ وہ شونیمی عورت آ رہی ہے اور اس کا جی پریشان ہے، اور خداوند نے یہ بات مجھ سے چھپائی اور مجھے نہ بتائی۔ آپ جانتے ہیں خدا اپنے نبیوں کو تمام باتیں نہیں بتاتا ہے، صرف وہ باتیں بتاتا ہے جو وہ چاہتا ہے کہ وہ جان جائیں۔ پس اس نے دیکھا اور اس نے کہا وہی ہے، کہا جا اس کا استقبال کر اور پوچھ کیا تو خیریت سے ہے، کیا تیرا شوہر خیریت سے ہے، کیا تیرا بچہ خیریت سے ہے۔ اور یہ وہ حصہ ہے جسے میں بھی بہت پسند کرتا ہوں۔ جب جہازی اس سے ملا اس نے کہا کیا تو خیریت سے ہے، کیا تیرا شوہر خیریت سے ہے، کیا تیرا بچہ خیریت سے ہے؟ اس نے جواب دیا سب خیریت ہے۔ ایک بچہ مردہ پڑا ہوا ہے، شوہر ماتم کر رہا ہے اور اس کا اپنا دل آنسو بہا رہا ہے، مگر پھر بھی سب خیریت ہے۔ وہ اس شخص کے پاس آئی تھی جس نے اسے بتایا تھا اور برکت دی تھی، اور اس نے اپنا بچہ حاصل کیا تھا، اور یقیناً خدا بتا سکتا تھا کہ اس نے اسے کیوں لے لیا تھا۔ خداوند نے دیا اور خداوند نے لیا، خداوند ہی کا نام مبارک ہو۔ وہ جاننا چاہتی تھی ایسا کیوں ہوا، اور دیکھیں وہ کیسے اوپر آئی اور پھر ایلیا کے قدموں میں گر گئی، اور جہازی نے اسے ہٹانا چاہا کیونکہ اس کے مالک کو معلوم نہ تھا، اور پھر اس نے بتایا کہ کیا واقعہ ہوا، اور ایلیا وہاں گیا، اپنے جسم کو اس چھوٹے بچے پر پسر دیا اور وہ چھوٹا بچہ زندہ ہو گیا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ماں کے ایمان پر بھی غور کریں۔ اس نے بچے کو اس بستر پر لٹا دیا تھا جس پر ایلیا سوتا رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں۔ میں پولس کا خیال یہاں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں کیا سوچتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں پولس بیمار اور مصیبت زدوں پر رومال اور پٹکے رکھتا تھا۔ میں یقین نہیں کرتا کہ پولس غیر الہامی تھا۔ میرا خیال ہے
इसी जगह से उसने ये सीखा था। क्या आपको याद है कि पहली बात एलिया ने जिहाजी से क्या कही थी? मेरा असा ले और इसे ले जाकर बच्चा पर रख देना। वो जानता था कि हर एक चीज जिसे वो छूता है मुबारक थी। और बस आप जानते हैं, पौलुस रुमालों पर दुआ नहीं करता था, वो बस उनको उसके बदन से छुआ कर ले जाते थे। ये लोगों का ईमान था। बस आप देखें, उसने कहा मेरा असा ले और अगर कोई तुझे सलाम करे तो जवाब ना देना और इसे बच्चा पर रख देना। लेकिन औरत का ईमान असा पर नहीं था बल्कि ये नबी पर था। और उसने कहा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तेरी जान की सौगंध मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। बस एलिया को उससे खलासी पाने के लिए उसके साथ जाना पड़ा। बस वो वहां गया और अपने बदन को उस लड़के पर रखा। बच्चा मुर्दा था मगर वो 7 बार छींका और जिंदगी में लौट आया। ओ खुदाया, छोटे बर्तमाई के लिए ये कैसी अजीम कहानी थी। बर्तमाई जब वो एक छोटा लड़का था तो वो ये छोटी कहानी बहुत पसंद करता था, क्योंकि ये छोटे बच्चे के दोबारा जी उठने के मुताल्लिक थी। ये उसकी पसंदीदा थी। अरे ये तो गुजरे दिनों की बात थी। काहिन उसे ऐसा बताते थे। अफसोस, ये वो जमाना था जब इसराइल के पास अजीम ताकतवर लोग और अजीम जोर आवर नबी उस सरजमीन में बसते थे। लेकिन काहिन कहते थे, आप जानते हैं यहोवा को मजीद नबियों की जरूरत नहीं है। बल्कि ना सिर्फ काहिन कहते थे, लेकिन फिर उन्होंने ये किया कि यहोवा को मजीद नबियों की जरूरत नहीं है। उसने हमें शरीयत दी है और हम एक चर्च, एक हैकल बनाएंगे और बस हमें इसी की जरूरत है। और लोग तकरीबन आज भी उसी तरह इसका यकीन करते हैं। मगर यहोवा अब भी यहोवा ही है और वो अपना तरीका कार तब्दील नहीं करता है। वो खुदा है और तब्दील नहीं होता है। अब वो यकीन कर चुके थे कि इन्हें बस इसी की ज़रूरत थी। और जबकि वो वहाँ बैठा हुआ दिन में ख्वाब देख रहा था जैसा कि ये था और उसके मतलब सोच रहा था, और उसकी अंधी आंखें गर्म सूरज की तरफ लगीं और फौरन उसने एक गधे के पैरों की आवाज़ सुनी जो पथरीली सड़क पर से आ रही थी जहाँ गोल पत्थर पड़े थे, और ये यरूशलेम की तरफ से थी। जैसा कि जब उसने गौर से सुना तो वहाँ कोई शख्स था जिसने पैरों में चप्पल पहन रखी थी और वो गधे के आगे आगे चल रहा था। और वो जान गया कि ये ज़रूर कोई दौलतमंद शख्स होगा, क्योंकि वो गधे पर सफ़र कर रहा था और गधे को पकड़ने के लिए उसके पास एक खादम भी था। बस वो खड़ा हो गया ये जानते हुए कि उसे जीने के लिए कुछ पैसे हासिल करने पड़ेंगे। बस वो उठा और अपनी चादर अपने गिर्द लपेट ली, और पुरानी फटी हुई चादर थी, और सड़क की तरफ भागता हुआ गया और उसने कहा मुझे खैरात दे दें, मुझे आज सुबह देर हो गई थी, क्या आप मेहरबानी से मुझे खैरात देंगे? मैं अंधा हूँ। और हम एक काफी सख्त आवाज आते हुए सुनते हैं, भिखारी रास्ते से हट जा, मैं यहोवा का खादम हूँ, मैं एक काहिन हूँ, मैं यरूशलेम से आया हूँ, मुझे एसोसिएशन ने भेजा है ताकि उस शफाया अबादत को रुकवा दूँ जो यहाँ आज सुबह यरीहो में होनी है। मुझे यहाँ भाइयों से मुलाकात करनी है ताकि बंदोबस्त करें कि ये काम ना होने पाए और लोगों को समझाएं। समझे, यहाँ शहर में एक छोटा नबी आया है, हमने सुना है कि वो यहाँ आज यरीहो में है और मैं इसलिए आया हूँ, मेरे रास्ते से हट जा। ये काहिन था। ओ ठीक है खादम, आप अपनी राह लें। और गधे ने दोबारा चलना शुरू कर दी। फिर भिखारी ने महसूस करते हुए वापस जाना शुरू किया ताकि पत्थर को ढूंढे और बैठ जाए। उसने अपना ख्वाब देखना जारी रखा और जब उसने सोचना शुरू किया कि वहाँ उस सड़क पर जहाँ मैं खड़ा था ज्यादा अरसे नहीं हुआ है कि एक अजीम जोर आवर नबी एलिया और अलीशा वहाँ बाहों में बाहें डाले उसी सड़क पर चल रहे थे, एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए यर्दन की तरफ आ रहे थे और यर्दन दोबारा खुलने जा रहा था। और दूसरी तरफ थकन से चूर इस नबी एलिया के लिए एक आतशी रथ और आतशी घोड़े मौजूद थे। वो वहाँ किसी ताकत के वसीले बंधे हुए थे ताकि उसे घर लेकर जाएं। और वो ये देखने वाला था ये जवान एलिया बल्कि अलीशा को पीछे रहकर
उस खिदमत को देखना था जो उसके सामने जाहिर की गई थी, और उसे अपनी आंखें उस नबी पर लगा कर रखनी थी। और मैं तसव्वुर कर सकता हूँ कि बरतमाई ने कहा होगा, काश कि मैं बस उस जमाना में होता और तब यहाँ बैठा होता, तो मैं फौरन उन नबियों के पास भाग कर चला जाता और सरनगू हो जाता और कहता, ओ खुदा के नबी, मेरे लिए दुआ कर और यहोवा मेरी बिनाई दोबारा मुझे लौटा दे। मगर काहिन कहता है, ऐसी मजीद कोई बात मौजूद नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। यहोवा मजीद अपनी कुव्वत से शिफा नहीं देता है, हमारे पास डॉक्टर और फलां चीज़ें हैं जो ऐसा करती हैं, और हमें मजीद वो नहीं चाहिए, बस यहोवा शिफा नहीं देता है। ये बात उन गुजरे हुए दिनों के लिए थी। हम बस शरीयत को मानते हैं और हम बीमार होते हैं और मर जाते हैं और आसमान पर चले जाते हैं, और बस यही कुछ है और हमें बस इसी की ज़रूरत है। फिर जैसे ही उसने सोचना शुरू किया तो उसे याद आया कि जहाँ वो बैठा हुआ था उस जगह से 500 गज भी दूर नहीं था जहाँ इसराइलियों ने पार करने के बाद खैमे लगाए थे, और तमाम चीज़ें तरतीब दी और तमाम खैमे तरतीब में लगाए और यरीहो पर चढ़ाई के लिए हुक्म का इंतजार कर रहे थे। और शायद जिस पत्थर पर वो बैठा हुआ था वो वही था जिसे यहोवा ने उन दीवारों से तोड़कर गिरा दिया था और कहा, जरा इसके बारे में सोचो। ज्यादा अरसा नहीं हुआ, एक अजीम जंगजू यशवा ने, जो खुदा का अजीम ताकतवर खादम था, बहार के मौसम में दरिया को पार किया था, खैमों को वहां ठीक दुश्मन के सामने लगाया। एक दिन यरीहो पर हमला करने की हिकमत अमली का मुताला कर रहा था, या एक शाम जबकि वो टहल रहा था, या शायद सुबह में, और उन फाटकों को ऊपर से नीचे तक देख रहा था कि वो कितने बड़े थे। वो उन दीवारों के ऊपर सफ ब सफ घोड़ों के रथों की दौड़ लगवा सकते थे। कैसे यशवा वो देख रहा था। उसने दीवार के करीब देखा और वहाँ एक शख्स अपनी नंगी तलवार लिए खड़ा था। यशवा ने अपनी तलवार निकाली और उसका मुकाबला करने को गया। यशवा ने बड़ी आवाज में पुकारा, कहा, क्या तू हमारी तरफ है या हमारे दुश्मनों की तरफ? उसने कहा, नहीं, मैं खुदावन के लश्कर का सरदार हूँ। और अजीम यशवा ने अपनी तलवार जमीन पर फेंक दी और अपना खुद उतारा और उसको सरनिगू होकर सजदा की। अंधा बरतमाई सोच रहा था कि जहाँ मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ वो इस जगह से 500 गज भी दूर नहीं था, जहाँ पर अजीम खुदावन का सरदार, खुदावन के लश्कर का सरदार खड़ा था, और यशवा उसके कदमों में सरनगू हो गया था। ओ, अंधेपन में ही होता, लेकिन काश कि मैं सिर्फ उन खैमों में होता, तो मैं खुदावन के अजीम लश्कर के सरदार से कहता, क्या तू मुझे बिनाई अता करेगा? और वो ज़रूर ऐसा कर देता। और वो ये नहीं जानता था कि वही यकसा सरदार उससे 100 गज की दूरी पर ही था। आज भी यही बात हमारी नाकामी का बायस बनती। हम कोशिश करते हैं कि सारे जलाल को और मसीह को पीछे किसी दूसरे ज़माने में रखें, जबकि बाइबल कहती है वो कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। वो आज रात इस इमारत में उसी कदर मौजूद है जिस कदर वो कभी गलील और यरूशलेम में चला करता था। वो अजीम सरदार ज़काई के घर से आ रहा था और लोग बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने शोर की आवाज़ सुनी और शोर में मिली जुली आवाज़ें थी। एक शख्स कह रहा था, नबी को होशियाना जो खुदावन के नाम से आता है, यहोवा का खादम गलील का नबी मुबारक हो। दूसरा शख्स कह रहा था, ऐसे शख्स से दूर रहो, हम इस जैसा कुछ भी इस शहर में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जैसे वो आगे बढ़ रहे थे तो उनमें से कुछ लोग उस पर सड़े हुए फल फेंक रहे थे, जबकि वो दरवाजा से गुजर रहा था और उसने ऐसा कभी कुछ नहीं सुना था। बस उसने कहा, क्या हो रहा है? ये शोर किस किस्म का है? यहाँ क्या हो रहा है? और लोग धक्के दे रहे थे। और कुछ देर बाद उसने उसी काहिन की आवाज़ सुनी जो एसोसिएशन को लेकर कहने के लिए वहां गया था ताकि वो इबादत ना हो पाए। उसने उसे कहते हुए सुना, उन्होंने मुझे बताया कि तू मुर्दों को जिंदा करता है। अब हमारे पास वहां पहाड़ पर उनसे भरा हुआ पूरा कब्रिस्तान मौजूद है। चलो देखते हैं
کہ تو ऊपर आकर हमारे सामने कुछ को जिंदा कर। मगर आप जानते हैं वो यरूशलेम की तरफ जा रहा था ताकि जाकर मसलूब हो। दुनिया के तमाम गुनाह उस पर लादे गए थे और वो यरूशलेम जा रहा था ताकि कुर्बानी के तौर पर पेश किया जाए, और उन्होंने उसे ठट्ठे किए और उसका मजाक उड़ाया, और उनमें से कुछ उसे मुबारक कह रहे थे और उनमें से कुछ उसे लान तान कर रहे थे। बिल्कुल इस वाक़या की तरह दर हकीकत हर इबादत में ऐसा होता है जहाँ वो आता है। कुछ उसके लिए आते हैं और कुछ उसके खिलाफ होते हैं, लेकिन इस बात से उसे कभी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अपना ध्यान अपना काम ख़त्म करने की तरफ लगा कर रखता है, और उसने बाकायदा चलना जारी रखा जैसा कि वो यरूशलेम की जानब बढ़ रहा था। और 12 अशखास ने उसे घेरा हुआ था और भीड़ को पीछे करने की कोशिश कर रहे थे, और कुछ उसे छूने की कोशिश कर रहे थे, और कुछ चला रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे, वगैरह वगैरह। और भीड़ एक तरह से उस गरीब शख्स के ऊपर चढ़ गई थी जो कि आज रात हमारा किरदार है। उन्होंने उसे पीछे धकेल दिया था। आए जरा सोचें कि वहाँ एक अच्छी नौजवान खातून चली आई। शायद मुमकिन है कि वो आज सुबह हमारी उस कहानी में रिबका की बहन हो सकती है, या शायद वो मसीह पर ईमान रखने वाली थी और उसने उन्हें उस बेचारे शख्स को धकेलते हुए देखा और उसे मालूम हुआ कि वो उसके साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे थे, लेकिन क्योंकि वो यीशु पर ईमान रखती थी तो उसने उसे मेहरबान बना दिया था। ये हमेशा बना देता है। ये इन्हें ज़रूरतमंदों और बेचारों का ख्याल करने पर माइल करता है। और बेचारे अंधे को धकेल दिया गया था और वो रुक गई और उसे ऊपर उठाया। शायद उसने उससे ये कहा हो, शायद इस तरह कुछ कहा, नौजवान खातून, मैं आपकी आवाज़ से बता सकता हूँ कि आप एक जवान खातून। जी हाँ, मैं हूँ। अरे भाई, क्या आप खड़े होंगे? मुझे लगता है शायद उन्होंने आपको चोट पहुँचाई है। उसने कहा, ये सारा हजूम किस बात का है? ये सारी हलचल और परेशानी किस बात की है? ये सारा मामला क्या है? क्यों? उसने कहा, क्या आप समझे नहीं कि नासरत का यीशु इब्ने दाऊद शहर में आया है? ये वही जा रहा है, गलील का नबी। आपका मतलब है आपको मालूम नहीं? नहीं, मैंने कभी उसके बारे में नहीं सुना है। खैर, मैं आपको बताती हूँ कि आज सुबह शहर में क्या हुआ था। क्या आप ज़कई को जानते हैं जो रेस्तोरां का मालिक है? जी हाँ, वो हमेशा से ही एक नकाद रहा है, मगर उसकी बीवी एक ईमानदार है। और आज सुबह ज़कई एक पेड़ पर चढ़ गया ताकि यीशु को देख पाए, और हम सब जानते हैं कि वो एक नबी है। और जब वो आया तो वो रुक गया और ऊपर देखा और ज़कई को उसका नाम लेकर बुलाया, जबकि पहले कभी यरीहो में नहीं आया था। बेचारा फकीर खुशी से उछल पड़ा। उसने कहा, फिर ये तो अस्तशना 18-15 का पूरा होना है। खुदावंद हमारा खुदा मूसा की मानद एक नबी बर्पा करेगा। ये ज़रूर वही है। अगर ये वही है तो इस वक्त वो किस जगह खड़ा है? वो सड़क पर तकरीबन 200 गज दूर खड़ा हुआ है। उसने सोचा वो मेरे पास से चला गया। बस उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, यीशु इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर, मुझ पर रहम कर। ऐ इब्ने दाऊद, जबकि तू गुजर रहा है तो मुझ पर रहम कर। अब जिस्मानी तौर पर वो कभी भी उसकी आवाज़ नहीं सुन सकता था, क्योंकि वहाँ बहुत शोरगुल था। कुछ उसके नारे लगा रहे थे और कुछ उसे मुबारक कह रहे थे और कुछ उस पर लान तान कर रहे थे, और उस शोर शराबे में वो कभी भी उसकी आवाज़ नहीं सुन सकता था, मगर वो कलाम था। और जब एक जान चला रही होती है, जैसे वो औरत जिसके खून जारी था, जिसने उसकी पोशाक को छू लिया था, बाइबल कहती है वो रुक गया। उसने उसे रोक दिया। ज़रा इस बारे में सोचें, सिर्फ इस बात पर गौर करें कि उस अंधे नाचीज़ बेचारे फ़कीर की आवाज़ थी, और जबकि दुनिया के गुनाह और बोझ उस पर लदे हुए थे और यरूशलेम जा रहा था कि गुनाह का कफारा दे, तब भी सिर्फ एक इंसानी जान की पुकार ने उसे रोक दिया और उसे साकन कर दिया। वो कल
اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ آج رات بھی صرف ایک پکار اسے منظر پر لے آئے گی، بالکل ویسے جیسے وہ اسے تب لائی تھی۔ دیکھیں وہ ہمیشہ یکساں رہتا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک رات ڈلاس ٹیکساس سے آ رہا تھا، یہ کافی سال پہلے کی بات ہے۔ مجھے میمفس میں روک لیا گیا اور انہوں نے مجھے وہاں ایک مشہور ہوٹل میں ٹھہرا دیا۔ ایئر لائن والوں نے کیا تھا، وہ پی بوڈی ہوٹل تھا، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ مجھے اگلی صبح کال کریں گے، تقریباً اس وقت جب لیموزین میں بیٹھ کر ہوائی جہاز تک جانا ہوگا۔ اور میں پوری رات اچھی نیند سویا، اور اگلی صبح میں اٹھا تو کچھ خط لکھے اور انہیں پوسٹ کرنے پوسٹ آفس جا رہا تھا تاکہ انہیں بھیج دوں۔ اور میں باہر نکلا اور سڑک پر جانا شروع کیا، اور اچانک سے میں نے محسوس کیا کہ کسی نے کہا رک جا اور واپس جا۔ خیر آپ جانتے ہیں کہ لوگ کیسا گمان کرتے ہیں، اور میں نے سوچا خیر یہ جو بھی تھا چھوڑو۔ تھوڑا سا آگے گیا اور کوئی دوبارہ کہنا شروع ہو گیا رک جا اور واپس جا۔ خیر میں ایک کونے تک گیا اور وہاں ایک بڑا آئرش پولیس والا کونے میں کھڑا ہوا تھا، اور میں ایک کھڑکی میں مچھلی پکڑنے والی ڈوری اور ایسی چیزیں دیکھ رہا تھا، اور شاید میں وہاں زیادہ دیر تک کھڑا رہا تھا، اور شاید اسے شک ہو گیا تھا کہ شاید میں ان ڈوریوں میں سے ایک لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ بس میں گھوما اور پیچھے کی جانب چلنا شروع کر دیا، اور جیسے ہی میں پیچھے کی جانب چلا تو تیز تیز رفتار سے چلنا شروع ہو گیا، اور میں ہوٹل کے پاس سے بھی گزر گیا، اور وہاں نیچے کافی دور دریا کے پاس پہنچ گیا۔ میں نہیں جانتا ہوں، میرا خیال ہے کہ شاید آج رات میں وہ جگہ تلاش کر پاؤں۔ میں نے سوچا یہاں دیر ہو رہی ہے، مگر کچھ تھا۔ کیا آپ خدا کی طرف سے رہنمائی کا یقین کرتے ہیں؟ جماعت کہتی ہے آمین ایڈیٹر۔ اور جب کہ میں نے بڑھنا جاری رکھا، اب دیر ہو رہی تھی اور میں جانتا تھا کہ مجھے جلدی کرنی تھی، مگر کچھ تھا جو مسلسل کہہ رہا تھا آگے بڑھتا جا، آگے چلتا جا۔ اور جیسا کہ غالباً مجھے کافی دیر ہو گئی تھی کہ واپس جاتا اور ہوائی جہاز پکڑتا، میں نے سوچا خیر مجھے اس رہنمائی کی پیروی کرنا ضرور ہے، اور میں چلتے ہوئے یہ چھوٹا سا گیت گا رہا تھا۔ جب میں نے صرف آپ پینتی کوسٹل لوگوں سے ملنا شروع ہی کیا تھا، وہ سب بالا خانہ پر جمع تھے، اور وہ سب اس کے نام میں دعا مانگ رہے تھے، اور روح القدس کا بپتسمہ پایا، اور خدمت کے لیے قوت اتر آئی۔ کیا آپ نے کبھی یہ گیت سنا ہے؟ اور میں خوش ہوں کہ میں کہہ سکتا ہوں میں ان میں سے ایک ہوں۔ میں اسے دوبارہ دہرانے کی کوشش کر رہا تھا، گا رہا تھا، آ میرے بھائی اس برکت کو لے جو تیرے دل کو گناہ سے پاک کر دے گی۔ اور جب کہ میں سڑک پر آگے چلتا جا رہا تھا تو میں نے دیکھا وہاں ہو بہو انٹی جمائمہ جیسی خاتون باڑ کے پاس کھڑی تھی، اور وہاں ایک چھوٹا سا گھر بھی تھا جیسے سفیدی پھرا کمرہ ہوتا ہے، باڑ کے ساتھ موجود تھا، اور اس نے آدمی کی شرٹ اپنے سر پر باندھی ہوئی تھی، اور میں نے گانا بند کر دی اور آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں کہاں جا رہا تھا۔ اس نے کہا خیر بس چلتا رہ، اور پس جب میں اس کے کافی قریب پہنچ گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک طرح سے مسکرا رہی تھی، اور میں نے اس کی جانب دیکھا اور اپنا سر گھمایا اور چلتا گیا۔ اس نے کہا پارسن صبح خیر۔ اب جنوب میں پارسن کا مطلب مناد ہے، اور میں نے کہا آنٹی صبح خیر۔ میں نے پیچھے دیکھا اور میں نے سوچا اسے کیسے معلوم ہے کہ میں ایک پارسن ہوں، اور میرے پاس تو کوئی بائبل نہیں یا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں دوبارہ گھما، میں نے کہا آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں ایک پارسن ہوں؟ اس نے کہا میں جانتی تھی کہ آپ آ رہے ہیں، اور میں نے کہا میرے لیے یہ حیرت کی بات ہے۔ اور اس نے کہا کیا آپ نے کبھی بائبل میں شونیمی عورت کے متعلق پڑھا ہے؟ میں نے کہا او جی ہاں مادام۔ اس نے کہا آپ جانتے ہیں وہ نہیں بن سکتی تھی، وہ بانجھ تھی، وہ ماں نہیں بن سکتی تھی۔ میں نے کہا جی ہاں مادام مجھے کہانی یاد ہے۔ کہا اور اس نے خداوند سے وعدہ کیا تھا کہ بے شک وہ خداوند کے لیے اس بچے کی پرورش کرے گی، اور کہا آپ جانتے ہیں میں بھی اسی قسم کی عورت ہوں۔ اس نے کہا میں اور میرا شوہر تھے،
मगर मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी और कहा मैंने खुदावन से वादा किया था अगर वो मुझे औलाद देगा तो मैं उसके लिए उसकी परवरिश करूंगी। उसने कहा उसने मुझे एक बच्चा दिया और कहा मैंने उस बच्चे की जितनी परवरिश कर सकती थी उतनी बेहतरीन परवरिश की ताकि खुदावन की खिदमत करे। उसने कहा मगर आप जानते हैं, उसने कहा वो गलत लोगों में चला गया और उसके बदन में एक बीमारी हो गई और कहा डॉक्टर साहब वो तमाम दवाइयाँ उसे दे चुके हैं जो वो उसे दे सकते थे और ये वो ले चुका है। कहा समाजी बीमारी से उसका खून आलूदा हो चुका है, उसे सिफिलिस है और बस कहा उसके खून का कुछ हिस्सा दोबारा उसके दिल में गिरता है, उसके दिल में सुराख हो चुके हैं और कहा वहाँ अंदर बेहोश पड़ा हुआ है और कहा एक डॉक्टर साहब 2 दिन पहले यहाँ आए थे और कहा ये अब दोबारा नहीं उठेगा, ये ख़त्म हो चुका है और कहा मैं बस यूं ही इस तरह अपने बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकती और कहने लगी फिर मैंने पूरी रात दुआ की, खुदावन अगर तू इसे ले जाने वाला है, तूने इसे मुझे अता किया था, मगर मैं चाहती हूँ वो कहे कि वो निजात पा चुका है ताकि मैं पुरयकीन हो जाऊं कि मैं दोबारा उसे मिलूंगी। और कहा मैंने दुआ की और मैंने उस तरह दुआ की जैसे शुनीमी औरत के बारे में लिखा हुआ है और कहा मैं सो गई और मैंने एक ख्वाब देखा। उसने बताया कि उसने खुदावन से कहा बोली तूने ये बच्चा मुझे अता फरमाया है और कहा मैं शुनीमी औरत की मानद बन गई हूँ, मगर तेरा नबी कहाँ है? और कहा उसने फरमाया देख वो यहाँ आ रहा है। और मैंने एक शख्स को देखा जिसने सर पर एक जानब करके टोपी पहनी हुई थी और भूरे रंग का सूट पहने सड़क पर चलता हुआ आ रहा था और कहा यह तकरीबन आज सुबह 4 बजे की बात है। उसने कहा मैं तब से यहाँ पर खड़ी हूँ, वो अब भी खुदा है। वो दोनों तरफ जवाब देता है। मैंने कहा मेरा नाम ब्रैनम है, मैं बीमारों के लिए दुआ करता हूँ, क्या आपने कभी मेरी खिदमत के बारे में सुना है? उसने कहा नहीं जनाब पार्सन ब्रैनम, मैंने कभी आपके मुतल्लिक नहीं सुना है। और उसने कहा क्या आप अंदर नहीं आएंगे? और जब मैं दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ा तो उस पर एक पुराना छोटा जंगला था और दरवाजे पर खेती का नोकीला औजार लटका हुआ था जैसे अरकनास में होते हैं और ये बस दरिया से थोड़ा ही दूर था। बहरहाल आप समझ गए हैं कि वो क्या था। बस मैंने दरवाज़ा अपनी तरफ खींचा और अंदर चला गया। जब मैं उस घर में दाखिल हुआ, मैं बादशाहों के महलों में भी जा चुका हूँ, 3 या 4 मुख्तलिफ बादशाहों के, इंग्लैंड के बादशाह, स्वीडन के बादशाह गस्टाफ और बहुत सारी जगहों पर जाता हूँ और उनके साथ दुआ करता हूँ। और मेरा ख्याल है कि मैं हॉलीवुड के कुछ बेहतरीन घरों में जा चुका हूँ, मगर कभी मुझे इस कदर खुश आमदीद नहीं कहा गया जितना मुझे इस एक घर में कहा गया था। सिर्फ एक सादा सा कमरा था, बल्कि 2 कमरे थे। पीछे एक छोटा सा किचन था, एक छोटा सा बिस्तर वाला कमरा था और एक पुराना सतूनों वाला बेड था। वहाँ दीवार पर कोई पोस्टर नहीं लगे हुए थे, लेकिन वहाँ एक निशान था, लिखा था खुदा हमारे घर को बरकत दे। मैंने देखा वहाँ एक कद्दावर बड़ा स्याह फाम लड़का लेटा हुआ था और दिखने में तकरीबन 18 साल का लग रहा था। बड़ा मजबूत सेहतमंद लड़का था और उसके हाथ में एक चादर थी और वो यूं कर रहा था आह आह। मैंने कहा इसके साथ मसला क्या है? उसने कहा वो सोचता है कि वो तारीक समंदर में खो चुका है और कहने लगी वो मुसलसल कहता रहता है कि वो समंदर में खो चुका है और वो अपना रास्ता तलाश नहीं कर पा रहा है। वो सोचता है कि वो कश्ती की पतवार चला रहा है। कहा वो ये हरकत तकरीबन 2 या 3 दिन से कर रहा है और कहा मैं इसे इस तरह मरने नहीं दे सकती। कहा क्या आप इसके लिए दुआ करेंगे? मैंने कहा जी हाँ मादाम। मैंने शिफा के मुतल्लिक बात करना शुरू की। वो उसमें दिलचस्पी नहीं रखती थी, वो बस इतना चाहती थी कि वो खुद कहे कि वो निजात पा चुका है। वो बस इसी बात की आरज़ूमंद थी कि वो निजात पा जाए और
میں نے کہا وہ ہے۔ وہ وہاں گئی اور اس کے سر کو تھاما اور اسے اپنی طرف کی اور اس کی گال پر چوما، اور اس نے کہا خدا امی کے بچے کو برکت دے۔ میں وہاں کھڑا ہوا یہ دیکھ رہا تھا اور میں نے سوچا جی ہاں بس یہی بات ہے۔ کوئی پرواہ نہیں کہ وہ خاندان پر کتنی رسوائی کو لایا تھا اور وہ کتنا دور جا چکا تھا۔ کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ کیسی مصیبت میں ہے، مگر پھر بھی وہ امی کا بچہ ہے۔ اور میں نے سوچا بائبل کہتی ہے ممکن ہے کہ ایک ماں اپنے شیر خوار بچے کو بھول جائے، پر میں تجھے نہ بھولوں گا۔ تو کس قدر محبت یہاں موجود ہے۔ دیکھ میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے۔ اس نے اسے چوما، ہم گھٹنوں کے بل ہو گئے۔ میں بستر کی چوکھٹ پر بیٹھ گیا۔ میں نے اپنے ہاتھ اس کے پیروں پر رکھے، وہ گرم اور اکڑے ہوئے تھے، اور میں نے کہا آنٹی کیا آپ پہلے دعا کریں گی؟ اور میرے دوستو میں جانتا تھا کہ وہ پہلے بھی اس سے بات کر چکی تھی۔ اس نے خدا کے حضور ایسی کمال دعا مانگی۔ پھر اس نے کہا کیا آپ دعا کریں گے؟ اور میں نے کہا جی ہاں مدام۔ اور میں نے کہا آسمانی باپ مجھے ہوائی جہاز کے لیے تقریباً 1 گھنٹہ دیر ہو گئی ہے۔ تو نے مجھے یہاں آنے کے لیے کہا اور مسلسل کہتا رہا، اور پھر میں نہیں جانتا ہوں کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں تو مجھے لانا چاہتا تھا یا نہیں، مگر اسی جگہ پر میں رک گیا ہوں۔ اگر تو نے مجھے یہاں اس لڑکے پر دعا کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اور ٹھیک اسی وقت اس لڑکے نے کہا او ماں۔ اس نے کہا ماں کی جان کیا چاہتا ہے؟ لڑکے نے کہا کمرے میں روشنی ہو رہی ہے، اور تقریباً 5 منٹ بعد وہ اپنے بستر پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے جلدی کی اور پہنچنے کے لیے نکلا۔ میں نے سوچا خیر میں بس ایک ٹیکسی لے لیتا ہوں، یہی کر سکتا ہوں، اور 1 دن اور انتظار کرتا ہوں یا اس وقت تک جب کہ مجھے ایک ہوائی جہاز نہ مل جائے۔ اور جب میں دروازے کے اندر داخل ہو رہا تھا تو تقریباً 2 گھنٹے اور کچھ وقت تاخیر سے پہنچا۔ تب میں نے انہیں کہتے ہوئے سنا پرواز نمبر 87 لوئی ویل کنٹکی کے لیے یہ آخری پکار ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ خدا کی کل مختاری ہے، سمجھے؟ اس بیچاری نادار ادنا سی سیاہ فام عورت کے ایمان اور دعا نے اس ہوائی جہاز کو روک دیا اور وہیں ٹھہرائے رکھا۔ وہ وہی یکساں خدا ہے جو یریحو کی دیواروں کے پاس رک جاتا ہے اور گھوم کر ایک اندھے فقیر کے پاس چلا جاتا ہے۔ وہ کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں خدا ہے۔ یہ ایمان ہے جو ایسا کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ یقین کریں۔ بہرحال تقریباً 2 سال بعد میں وہاں ایک ٹرین میں جا رہا تھا، بلکہ فینکس واپس آ رہا تھا، اور آپ جانتے ہیں وہ آپ سے ان سینڈوچز کے بدلے کافی پیسے لیتے ہیں، اور میں عام طور پر کوشش کرتا ہوں کہ اسٹیشن سے اتروں اور اپنے لیے کچھ ہیم برگر لے آؤں، بلکہ ان کا پورا پیکٹ لے لوں تاکہ جب تک پہنچ نہ جاؤں کام چلتا رہے، کیونکہ وہ ایک سینڈوچ کے 75 سینٹ لیتے ہیں، جو اتنا زیادہ کاٹ دیا گیا ہوتا ہے کہ اس کی صرف ایک ہی سائیڈ بچتی ہے، اور اب یہ بہت بیکار ہوتا ہے۔ اور میں میمفس پر اتر گیا، اور اگر کبھی کوئی میمفس گیا ہے تو جانتا ہوگا کہ کیسے وہاں ٹرین اپنی پٹڑی تبدیل کرتی۔ میں اتر گیا اور بھاگ کر ایک ہیم برگر کے ٹھیلے پر چلا گیا۔ میں نے کسی کو کہتے ہوئے سنا ہیلو جناب پارسن برینم۔ میں نے آس پاس دیکھا تو وہاں ایک لال ٹوپی پہنے نوجوان لڑکا کھڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا ہیلو بیٹا، اور پیچھے مڑ گیا۔ اس نے کہا کیا آپ مجھے نہیں جانتے ہیں؟ کیا نہیں جانتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، میرا خیال ہے کہ نہیں جانتا ہوں۔ اس نے کہا آپ جانتے ہیں، ایک دن آپ میرے گھر پر آئے تھے اور کہا میری ماں باہر کھڑی ہوئی تھی اور آپ نے اس کندھے پر تھپکی دی تھی جبکہ وہ پسینے سے بھیگی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کیا تم وہی لڑکے نہیں ہو؟ اس نے کہا جی ہاں میں وہی ہوں۔ اس نے کہا جی ہاں میں وہ لڑکا ہوں۔ اس نے کہا میں نے صرف شفا ہی نہیں پائی تھی، کہا بلکہ اس وقت سے میں نے نجات بھی حاصل کر لی ہے۔ بس یہ ساری بات تھی۔
हैरत अंगेज फजल है। वही खुदा है जिसे एक अंधा फकीर रोक सकता था, एक नादार अदना सी स्याह फाम औरत हवाई जहाज को रोक सकती थी। ये खुदा पर उसका ईमान था और दुआ थी, क्योंकि वो उसका यकीन कर रही थी। यस्सु खड़ा हो गया। उस अंधे फकीर की हालत ने उसे ठीक उसकी राह में रोक दिया था। मैं चाहूँगा कि कुछ रातों के लिए इस मजमून पर मनादी करूं। और फिर यस्सु साकन होकर रुक गया, लेकिन वहाँ वो खड़ा हो गया और कहा, उसे यहाँ लाओ। आमीन। ज्यादा अरसा नहीं हुआ है मैं अंधे बरतमाई के बारे में एक कहानी पढ़ रहा था, जबकि मैं बाइबल की तारीख का मुतालिया कर रहा था। शायद ये एक दास्तान है, मगर ये कहती है कि वो हमेशा से शिफा पर भरोसा रखता था। कोई परवाह नहीं करता था कि काहिन क्या कहता है, वो फिर भी उसका यकीन करता था। कहा जाता है कि वो एक शादीशुदा शख्स था। उसकी एक बीवी थी और एक छोटी बेटी थी जिसे उसने कभी नहीं देखा था, और वो तकरीबन तब इस उम्र की हो चुकी थी, तकरीबन 16 साल की थी। उसने उसे कभी नहीं देखा था। कहा जाता है कि वो ऐसा करता था। आप जानते हैं, जब आप खैरात मांग रहे हों तो आपके पास दूसरे लोगों से कुछ तो अलग चीज होनी चाहिए, वरना आप लोगों की तवज्जो हासिल नहीं कर पाते। इंडिया में वो एक सांप को एक न्योले के हाथों मरने देते हैं और कुछ मुख्तलफ करते हैं ताकि वो तवज्जो को हासिल कर सकें। मैंने गली में एक बंदर को एक लकड़ी के साथ गेंद से खेलते हुए देखा। यहाँ कुछ ऐसा करते हैं ताकि तवज्जो हासिल करें, फिर वो लोग इन्हें पैसे देते हैं। और कहा जाता है कि बरतमाई के पास 2 कबूतर थे जो करतब दिखाते थे जैसे छोटे। वो एक दूसरे पर कूदते थे और लोगों की तफरीह का बायस बनते थे। वो सयाह लोग उसे पैसे देते थे। और कहा जाता है कि एक दिन उसकी बीवी काफी बीमार पड़ गई और उन्होंने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने कहा, बरतमाई, मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं उस बुखार का तोड़ नहीं कर सकता हूँ जो इसे हो गया है। और ऐसा कहा जाता है कि उसने दीवार को महसूस करते हुए अपनी राह ली और घर से बाहर निकला और कहा, यहोवा, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तेरा यकीन करता हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है कि तुझे पेश करूँ। मेरे पास यहाँ 2 कबूतर हैं जिनके जरिए मैं अपना रोजगार चलाता हूँ, लेकिन अगर तू सिर्फ मेरी प्यारी बीवी को मेरे साथ रहने दे ताकि मेरी बेटी की परवरिश में मेरी मदद करे, क्योंकि मैं अंधा हूँ और मैं देख नहीं सकता हूँ। अगर तू सिर्फ मेरी बीवी को तंदुरुस्त कर दे ताकि वो मेरी मदद कर पाए, तो मैं वादा करता हूँ कल मैं एक अजीम कुर्बानी चढ़ाऊंगा। मैं अपने कबूतरों को वहाँ ऊपर ले जाऊंगा ताकि अपनी शुक्रगुजारी के लिए इन्हें पेश करूं। खैर, वो कहते हैं उसकी बीवी बिल्कुल ठीक हो गई। वो कबूतरों को ले गया और उन्हें पेश कर दिया। इसके कुछ अरसा बाद उसकी छोटी बेटी बीमार पड़ गई। वो भी मौत के करीब चली गई थी। वो दोबारा दुआ करने के लिए बाहर चला गया। उसने कहा, यहोवा, मेरे पास मजीद कुछ नहीं बचा है, मगर मेरे पास एक बरा है। और उन दिनों में एक बरा अंधे को रास्ता दिखाता था, जैसे अब कुत्ते करते हैं। उन्हें अंधों की रहनुमाई के लिए तरबियत दी जाती और उसके पास एक बरा था जो उस जगह तक उसकी रहनुमाई करता था जहां वो भीख मांगा करता था। उसने कहा, यहोवा, वाहिद चीज जो मेरे पास बाकी है वो ये बरा है। और कहा, अगर तू मेरी बेटी को जिंदा रहने दे, हालांकि मैंने उसे कभी नहीं देखा है, लेकिन जब मैं अपने हाथों से उसके बाल बनाता हूँ तो वो मेरा इत्मीनान है। और कहा, वो मुझसे प्यार करती है और मैं उससे प्यार करता हूँ। और कहा, यहोवा, अगर तू उसे जिंदा रहने दे तो मैं तुझे कुर्बानी के तौर पर अपना बरा पेश कर दूं। और उसकी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई और वो यूं अपने बरा के साथ हैकल जा रहा था और काहिन बाहर निकला और बालकनी पर खड़ा हो गया और कहा, अंधे बरतमाई, आज सुबह तू कहाँ जा रहा है? उसने कहा, मैं हैकल में जा रहा हूँ ताकि इस बरा को कुर्बानी के तौर पर पेश करूँ। उसने कहा, अंधे बरतमाई, तू ऐसा नहीं कर सकता। कहा,
मैं तुझे कुछ पैसे देता हूँ और तू अस्तबल जा और एक बरा खरीद ले और उसको कुर्बान कर देना। उसने कहा, मैंने खुदा से कभी एक दूसरे बरे का वादा नहीं किया था, मैंने खुदा से इस बरे का वादा किया था। उसने कहा, लेकिन अंधे बरतमाई, तू इस बरे को पेश नहीं कर सकता है क्योंकि ये बरा तेरी आंखें हैं। उसने कहा, अगर मैं यहोवा के साथ किए हुए अपने वादे को निभाऊंगा तो वो मेरी आंखों के लिए एक बरा मुहैया करेगा। और उसने अक्टूबर की उस सर्द सुबह इस चीज को पा लिया था। अंधे बरतमाई की आंखों के लिए एक बरा मुहैया कर दिया गया था। कहा, उसे यहाँ लाओ। उसने अपने हाथ उसकी आंखों पर रखे और खुदा के उस मुहैया करदा बरे ने उसकी आंखें खोल दी। दोस्तों, आप जानते हैं इस बारे में बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, जैसा कि वो मसलूब होने के लिए जा रहा था, मगर हम इन्हें किसी और वक्त सीखेंगे। क्या आप जानते हैं कि वही बरा आज रात आपकी आंखों के लिए भी मुहैया किया गया है। वही यकसा बरा आज रात यहाँ मौजूद है। खुदा का मुहैया करदा बरा है। उसके पास कोई दूसरा नहीं है, ना ही कभी दूसरा होगा। यही खुदा का मुहैया करदा बरा है। क्या आप इस बात का यकीन करते हैं? जमात कहती है आमीन। एडिटर, मैंने अपनी घड़ी पर देखा था कि मैं पहले ही ज्यादा वक्त ले चुका था। 10 बजने में 20 मिनट बाकी, जबकि मैं कोशिश कर रहा था कि मैं 9 बजे ख़त्म कर दूं या 9:30 बजे मामूल के मुताबिक ख़त्म कर दूं। लेकिन आए अपने सरों को एक लम्हे के लिए झुकाते हैं। मैं चाहता हूं कि अब हर एक आंख बंद हो जाए और अपने सरों को झुका लें, एक लम्हे के लिए संजीदा हो जाएं। ऐ यीशु, ऐ इब्ने दाऊद, फकीर चला उठा, मुझ पर रहम कर। और वो शांत नहीं हो रहा था। उसे जरूर उसकी तवज्जो चाहिए थी। और क्या आप यकीन नहीं करते हैं कि आज रात भी हमारी वही पुकार उसे दोबारा मंजर पर ले आएगी जो तब ले आई थी? तो फिर आज ऐसा क्यों नहीं करेगी? अब जबकि आप अपने सरों और दिलों को झुकाते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप उसको पुकारें। यस्सु, उसे इब्ने दाऊद ना कहें, क्योंकि वो आपके लिए इब्ने दाऊद नहीं है, बल्कि वो खुदावंद है। खुदावंद यस्सु, मुझ पर रहम कर, मेरी अंधी आंखों को खोल दे। मैंने इस खादम को सुना है जो आज रात हमारे साथ है। इसने कहा है कि तूने वादा किया है कि तू आखिरी दिनों में अपने आप को इब्राहिम की नस्ल पर ज़ाहिर करेगा, जैसे तूने उस वक़्त अब्राहम और उसकी नस्ल के साथ किया था। तूने ये वादा किया है और तू कलाम है। गुजरी चंद रातों में मैंने कुछ अजीब चीज़ों को देखा है। उसने मुकद्दस यूहन्ना 14:12 में कहा, मैं जानता हूँ जो मेरा यकीन करता है, जो काम मैं करता हूँ वो भी करेगा। और उस औरत ने उसकी पोशाक को छुआ और वो जान गया कि उसकी परेशानी क्या थी, क्योंकि उसने इस कदर ईमान का मुजाहरा किया था। क्यों? ये यकीन था कि वो क्या था। उसने जो किया था उस ईमान के वसीला उसने उसको अच्छा कर दी। कहा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। और एक अंधे शख्स ने यरीहो के दरवाजा पर यही काम किया था। आज सुबह एक शख्स पेड़ पर था, उसके गुनाह उसे बख्श दिए गए थे। ऐ बरे, मेरी अंधी आंखों को खोल दे ताकि मैं महसूस कर पाऊं कि मैं उसकी हजूरी में हूं, कि वो यहाँ मौजूद है। तूने फरमाया, जहाँ भी 2 या 3 मेरे नाम में जमा हैं, मैं उनके दरमियान मौजूद हूँ। ऐ खुदा के बरे, मेरी अंधी आंखों को खोल दे और मुझ पर रहम फरमा। और जब कि आप ये दुआ मांगते हैं तो अगर आपके जहन में कोई भी शक है या कोई भी शक अभी तक बाकी है, अब हम एक अजीम शफाया इबादत की शाम में मौजूद हैं। अगर इस बारे में कोई भी शक रहा है तो क्या आप उसे नहीं कहेंगे कि तमाम छिलके आपकी आंखों से हटा दे, ताकि आप वाज़े तौर पर समझ पाएं। मैं इन चंद रातों से अपने पूरे दिल से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कुछ दिखा पाऊँ कि वो कलीसिया को अपना आखिरी निशान दे रहा है। इससे पेशतर कि वो यहूदियों की तरफ जाए, गैर कौम की दुल्हन बुला ली जाती है। कोई गैर ज़बान में बोलता है और फिर
اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے ایڈیٹر۔ اب اگر میں صحیح سمجھ رہا ہوں تو جب آپ دعا کر رہے تھے تو پاک روح نے کلام کیا اور پھر اس کا ترجمہ دیا ہے۔ خدا آپ کو دعوت دے رہا ہے۔ یہاں کتنے ہیں جو چاہتے ہیں کہ خدا کا مہیا کردہ برا ان کی آنکھیں کھولے تاکہ آپ اسے اسی وقت یہاں پر موجود دیکھ پائیں؟ کیا آپ اپنا ہاتھ بلند کریں گے؟ کہیں اے خدا میری اندھی آنکھوں کو کھول دے، خداوند میرے دل سے میرے اس پردہ کو ہٹا دے تاکہ میں سمجھ پاؤں۔ اور اب وہ کیسے جانا جائے گا؟ ہم کیسے اسے جان پائیں گے؟ اس کی فطرت سے، اس کے کاموں سے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ اس نے کہا میں تاک ہوں اور تم ڈالیاں ہو۔ اب ڈالی پھل لاتی ہے نہ کہ تاک، یہ صرف ڈالی کو زندگی دیتا ہے، اور اگر ڈالی کبھی پھل لاتی ہے یا اس تاک میں سے ڈالی نکلتی ہے تو اس پر انگور ہی ہوں گے، اور اگر اگلی تاک نکلتی ہے یا اس تاک سے ڈالی نکلتی ہے تو اس پر بھی انگور ہی ہوں گے۔ اگر پہلی کلیسیا جو اس تاک میں سے نکلی تو تمام نعمتوں کے ساتھ ایک پینتی کوسٹل کلیسیا تھی، پھر اگر دوبارہ کبھی وہ ایک اور شاخ نکالے گی تو وہ اس کے پیچھے ایک اور اعمال کی کتاب لکھ ڈالیں گے، اور یہی چیز ان کے پاس رسولوں کے دنوں میں تھی، اور رسولی زمانہ کبھی ختم نہیں ہوا۔ پطرس نے پینتی کوست کے دن کہا توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے، کیونکہ یہ وعدہ تم سے اور تمہاری اولاد سے اور ان تمام دور کے لوگوں سے بھی ہے جنہیں خداوند ہمارا خدا بلائے گا۔ اور جب تک خدا بلاہٹ دے رہا ہے رسولی زمانہ چلتا رہے گا، کیونکہ یہ وعدہ ہے جیسا تب تھا تمہارے ساتھ اور تمہاری اولاد کے ساتھ اور ان تمام دور کے لوگوں سے بھی ہے جنہیں خداوند ہمارا خدا بلائے گا۔ خداوند ہماری آنکھیں کھول دے اور ہمیں اس مہیا کردہ برا کو دیکھنے دے۔ تو نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ تو خود کو آخری دنوں میں ظاہر کرے گا، جیسے تو نے سدوم میں کیا تھا جب ابن آدم ظاہر کیا گیا تھا۔ اے خدا ہم دعا مانگتے ہیں کہ اب تو ہمیں یہ بخش دے۔ خداوند ہم تیرے لوگ ہیں، ہم تیری ڈالیاں ہیں، ہم اس لائق نہیں ہیں، ہم کچھ بھی مانگنے کے لائق نہیں ہیں، لیکن اگر ہم اس بارے میں سوچتے ہیں تو پھر ہم بہت کمزور ہیں، پھر ہم اس لائق نہیں ٹھہرتے ہیں۔ مگر خداوند جب میں نگاہیں وہاں اوپر لگاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ میرے لیے ایک برا مہیا کر دیا گیا ہے، ایک برا ہے جو مہیا کر دیا گیا ہے۔ پھر خدا مجھے نہیں دیکھتا ہے، وہ میرے برے کو دیکھتا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ اس برا کے ساتھ کوئی گڑبڑ نہیں ہے، وہ پہلے ہی قبول ہو چکا ہے۔ خداوند اب آج رات ہونے دے کہ خدا کا کلام ہمارے درمیان مجسم ہو جائے، کہ برتمائی کا ایمان جو یہاں موجود ہے اور اس عورت کا جس کے خون جاری تھا یا جو بھی مسئلہ تھا، اور شمعون پطرس کا اور زکئی کا جو پیڑ پر تھا، اور مختلف لوگوں پر جو یہاں موجود ہیں، ان میں سے ہر ایک میں آ جائے جو ضرورت مند ہیں۔ خداوند اپنے آپ کو انسانی جسم کے وسیلے ظاہر کر، آج رات اپنے کلام کو ہمارے درمیان زندہ کر دے تاکہ ہم جانیں اور دیکھ پائیں کہ تو ہی خدا ہے۔ اور خداوند کاش ہر ایک اندھی آنکھ سمجھنے کے لیے کھول دی جائے، تاکہ جب یہ عظیم شفائیہ عبادت شروع ہو تو کاش ان میں سے ہر ایک شفا پا جائے۔ یہ تمام بچے اور لوگ جو بیساکھیوں پر ہیں یا ان کے ساتھ جو بھی پریشانی ہے اور جو لاٹھیوں کے سہارے موجود ہیں، کاش کہ وہ یہاں سے اندھے برتمائی کی مانند ہو کر جائیں۔ اس نے اپنی بینائی حاصل کر لی تھی۔ باپ یہ بخش دے، ہم یہ یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ اب ہم دعا کر چکے ہیں اور اب بڑی سنجیدگی اور خاموشی سے یقین کریں۔ اب میں کیا یہ چھوٹی سی تمثیل یہ کیا ہے؟ کیا یہ سچائی ہے یا پھر یہ سچائی نہیں ہے؟ اور مسیح کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ اب آپ اسے کیسے جان پائیں گے؟ اب کیا ہوا اگر کوئی شخص چوگا پہن کر چلتا ہوا یہاں آ جائے اور اس کی داڑھی اور بال ہوں جیسے مصور نے اس کی تصویر بنائی ہے، اور اس کے ہاتھوں میں کیلوں کے نشان ہوں،
اور خون اس کے چہرے پر بہہ رہا ہو، وہ یسوع نہیں ہوگا، جی نہیں، وہ کبریا کے داہنے ہاتھ بیٹھا ہوا ہے۔ جب وہ آتا ہے تو ہر ایک گھٹنا جھکے گا اور ہر ایک زبان اقرار کرے گی۔ پس لیکن آپ اسے کیسے جان پائیں گے؟ دیکھیں، کوئی بھی ریاکار خود کو اس طرح بنا سکتا ہے اور اس طرح اداکاری کر سکتا ہے، یقیناً، لیکن آپ اسے کیسے جان پائیں گے؟ جب آپ اس کی فطرت دیکھ لیں تو وہی ہے، اس کا کلام مجسم ہو رہا ہے اور وہی کام کر رہا ہے جو اس نے ہمیشہ کیے ہیں، تب آپ جان جائیں گے کہ وہ وہی ہے۔ کیا یہ درست ہے جو کام میں کرتا ہوں؟ اب دیکھیں، آپ خود کو اس کا یقین کرنے دیں، آئیں اپنے ذہن کو بے حس نہ ہونے دیں، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں، ایسا مت کریں۔ آپ خدا کے پاس اتفاقاً نہیں آتے ہیں، آپ اس کے پاس اس کے کلام کے وسیلہ فہم کے ساتھ آتے ہیں۔ آپ اپنے سامنے کلام لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں، خداوند تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، میں نے تجھ سے درخواست کی ہے کہ میری آنکھیں کھول دے۔ آج رات میرا ایمان خداوند یسوع کو روک لے، کاش وہ میری طرف مڑے اور مجھے بتائے جیسے اس نے بتایا تھا، اس عورت نے جیسے کئی سال پہلے کیا تھا، اور آپ اپنے پورے دل سے اس کا یقین کریں۔ اب سامعین میں جہاں تک میں دیکھ پا رہا ہوں، جنہیں میں دیکھ سکتا ہوں، ان میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے جسے میں جانتا ہوں۔ آپ سب اجنبی ہیں، اور بعض اوقات آپ سوچتے ہیں کہ جو لوگ یہاں سامنے کھڑے ہوتے ہیں صرف وہی شفا حاصل کرتے ہیں۔ جی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مجھے پرواہ نہیں کہ آپ کہاں پر ہیں، آپ صرف یقین کریں۔ مجھے پرواہ نہیں چاہے عمارت میں کہیں بھی ہیں، وہ جانتا ہے آپ کون ہیں اور آپ کہاں پر ہیں۔ اب دیکھیں، اگر وہ کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے، کاش کہ آپ کا ایمان اس کو روک پائے جیسے برتمائی نے کیا تھا۔ آپ کو فقیر بننے کی ضرورت نہیں ہے جیسے اس نے کیا، آپ کو اس کی طرح چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چیخو پکار نے اسے نہیں روکا تھا، اس نے وہ نہیں سنا تھا، یہ تو ایمان تھا جس نے اسے روک دیا تھا، تیرے ایمان نے۔ اس نے یہ نہیں کہا تیری چیخو پکار نے تجھے اچھا کر دیا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا، سمجھے؟ تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا۔ ٹھیک ہے، خداوند مبارک ہو۔ میں سوچتا ہوں کہ اگر وہ خادم جو وہاں بیٹھا ہے، وہ بزرگ بھائی جو 65 سال سے منادی کر رہا ہے، کیا آپ میرے لیے ایک کام کریں گے؟ جناب، کیا آپ یہ کریں گے؟ اپنا ہاتھ اس عورت پر رکھیں جو آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، اور دل کی بیماری اسے چھوڑ جائے گی۔ بس یہی بات ہے، ٹھیک ہے بہن؟ کیا آپ اس کا یقین کرتی ہیں؟ ٹھیک ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ اس نے کس کو چھوا؟ میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا، مگر ایسا ہوا اگر تو ایمان رکھے۔ کیا آپ یقین کرتے ہیں؟ جماعت کہتی ہے آمین۔ ایڈیٹر، کیا یہ بات اسے شناخت کرواتی ہے؟ کیا آپ کی آنکھیں کھل گئیں؟ تو پھر اس کی طرف دیکھیں، وہ قابل تعریف ہے، وہ عظیم فاتح ہے۔ یہاں ایسا کچھ نہیں، کوئی عقیدہ نہیں، کوئی تنظیم نہیں، کوئی سائنسدان نہیں، کچھ نہیں ہے جو اسے روک سکتا ہے۔ وہ خدا ہے، آمین۔ میں یہاں موجود کسی بھی شخص کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ یقین کرے کہ وہ اب یہاں موجود ہے۔ کتنے ہیں جنہوں نے کبھی اخبار میں خداوند کے اس فرشتہ کی تصویر دیکھی ہے جو انہوں نے واشنگٹن میں رکھی ہوئی ہے؟ وہ ٹھیک یہاں اس پلپٹ فارم پر اس گھڑی کھڑا ہوا ہے۔ جی ہاں، میں جانتا ہوں وہ یہاں ہے۔ میں یہ جانتا ہوں، میں کوئی جنونی نہیں ہوں، میں اس بات سے بہت دور ہوں۔ میں آپ کو کلام کی سچائی بتا رہا ہوں، آپ اس کا یقین کریں اور پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ یہاں وہ دوبارہ موجود ہے، وہ سیاہ فام بہن جو وہاں اختتام پر بیٹھی ہوئی ہے، آس پاس دیکھ رہی ہے۔ در حقیقت وہ خدا سے حمایت چاہتی ہے۔ وہ عورت ایک خادمہ ہے اور وہ خداوند سے دعا کر رہی ہے کہ اس کی خدمت میں اس کی مدد فرمائے۔ خاتون، کیا یہ درست نہیں ہے؟ اگر یہ درست ہے تو اپنا ہاتھ اٹھائیں۔ میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا ہے، یہ میرے لیے اتنی ہی اجنبی ہے جس طرح اس وقت وہاں ٹینیسی میں وہ سیاہ فام خاتون تھی۔ وہاں ایک آدمی ہے، سیاہ فام شخص ہے، آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، ایک طرح سے کافی شادمان ہو گیا ہے۔ جناب، کیا آپ مجھ پر خدا کا خادم ہونے کا یقین کرتے ہیں؟ کیا آپ کرتے ہیں؟
उस औरत ने आपको छुआ जैसा कि उन्होंने किया था। कहा, तुम्हारी सलामती हो, मैं आपको नहीं बुला रहा हूँ बल्कि वो आपको बुला रहा है। अगर आप उसका अपने पूरे दिल से यकीन करते हैं तो फिर वो शुगर ज़ियाबतिस आपको छोड़ जाएगी। क्या आप इसका यकीन करते हैं? आमीन। ठीक है, तो फिर आप इसे हासिल कर सकते हैं। आमीन। खुदावंद की तारीफ हो। बस यही बात है। उसने किसको छुआ? उसने कभी मुझे नहीं छुआ, उसने मसीह को छू लिया है। यहाँ एक नौजवान सफेद फार्म लड़का बैठा हुआ है। यहाँ बैठकर मुझे देख रहा है। उसके दिल में एक गहरी आरजू है। मैं आपको कभी नहीं मिला हूँ, लेकिन आप रूहुल कुद्स के बपतिस्मा की तलाश में हैं। जी हाँ, आप हैं। क्या आप इसका यकीन करते हैं? यकीन करें, आप इसे हासिल करेंगे। नौजवान शख्स, क्या आप इसका यकीन करते हैं? ठीक है, अगर आप इसका यकीन करेंगे तो आप इसे हासिल कर सकते हैं। यहाँ एक औरत है जो यहाँ पीछे है। वो तकलीफ उठा रही है। ये इसका बायां बाजू है। ये टूट गया था। बाएं बाजू पर गिल्टी बन चुकी है और इसके दाएं बाजू में इसे एसाबी वर्म और गेंठिया हो चुका है। अब वो इससे आज़ाद हो जाएगी। मिसेस कौंसल, क्या आप अपने पूरे दिल से इसका यकीन करती हैं? क्या आप यकीन करती हैं कि खुदा ऐसा कर सकता है? आप शिफा पा चुकी हैं। यीशु मसीह ने आपको अच्छा कर दिया है। अपनी ज़िंदगी में मैंने कभी इस औरत को ना देखा और ना ही इसके मतलब सुना है। यहोवा जानता है कि यही सच्चाई है। आमीन। यहाँ एक बेचारी स्याह फाम खातून बैठी हुई है। वो बहुत सारी पेचीदगियों से तकलीफ उठा रही है। पहली बात, आपकी आंखों का मसला है। इसलिए नहीं कि आप चश्मा पहनती हैं, लेकिन बहरहाल आपकी आंखें खराब हो रही हैं। आपको जोड़ों की सोजिश और दर्द है। अगर ये दुरुस्त है तो अपना हाथ हिलाएं। आपको सीने की तकलीफ भी है। अगर ये दुरुस्त है तो अपना हाथ हिलाएं। आपके मैदे की तकलीफ भी है। अगर ये दुरुस्त है तो अपना हाथ हिलाएं। क्या आप यकीन करती हैं कि खुदा मुझे बता सकता है कि आप कौन हैं? एडना जेराल्ड। अगर आप अपने पूरे दिल से यकीन करें और बस ईमान रखें तो आप अपनी शिफा हासिल कर सकती हैं। आमीन। क्या आप यकीन करते हैं कि वो कल और आज बल्कि अब तक यकसा है? जमात कहती है आमीन। एडिटर, इस खातून के मतलब क्या ख्याल है जो यहाँ दूसरी कतार के इख्तिताम पर बैठी हुई मेरी तरफ देख रही है? उसके पाँव के साथ मसला है। क्या आप ईमान रखती हैं कि खुदा आपके पाँव को अच्छा कर देगा? अगर आप करती हैं तो अपना हाथ उठाएं। मैं इसे नहीं जानता हूँ, ना ही कभी इसे देखा है। उस खातून के मतलब क्या ख्याल है जो उसके आगे बैठी हुई है? क्या आप बहन इस तरफ देखें। क्या आप पूरे दिल से मुझ पर खुदा का खादम होने का यकीन करती हैं? आपको एसाबी वर्म है जिसके बायस आप परेशान हैं। अगर ये दुरुस्त है तो अपना हाथ हिलाएं। अब आप शफा हासिल कर सकती हैं। उस अगली औरत के साथ जो खातून बैठी हुई हैं, क्या आप पूरे दिल से इसका यकीन करती हैं? आप भी तकलीफ उठा रही हैं। क्या आप ईमान रखती हैं कि खुदा मुझे बता सकता है आपकी परेशानी क्या है? गुर्दों का मसला है। अगर ये दुरुस्त है तो अपना हाथ हिलाएं। उसके साथ जो खातून बैठी है, क्या आप ईमान रखती हैं आप जहनी दबाव से तकलीफ उठा रही हैं और आपकी आंखों के साथ भी मसला है? अगर ये दुरुस्त है तो अपना हाथ हिलाएं। खातून जो उसके आगे बैठी है, बहन, क्या आप यकीन करती हैं आप पर साया है? आपके पेट का मसला है। ये पेट का कैंसर है। क्या आप ईमान रखती हैं खुदा ने आपको शिफा दी है? आमीन। क्या आप यकीन करते हैं? क्या आपकी आंखें रोशन हुई हैं और ईमान रखते हैं कि वही खुदा का बेटा है? फिर अगर आप करते हैं तो अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और उसे कबूल करें और अपने पूरे दिल से उसका यकीन करें। वो कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। ऐ यीशु इब्न दाऊद, मुझ पर रहम कर। ऐ फरोतन निजात दहिंदा, मेरे पास से गुजर ना जा। मेरी आजिज़ फरियाद को सुन ले। जबकि तू दूसरों को बुला रहा है, तू मेरे पास से गुजर ना जा। तू ही मेरे इत्मीनान का चश्मा है। जीवन से बढ़कर
मुझ को प्यारा है? कौन है ज़मीन पर तेरे सिवाय मेरा, या कौन है आसमान पर तेरे सिवाय मेरा? क्या वाक़या हुआ? आपके ईमान की बदौलत बिल्कुल जैसे उस अंधे फ़कीर ने उसे मंजर पर बुला लिया था। आमीन। क्या आप उसका यकीन करते हैं? जमात कहती है आमीन। एडिटर: ओ शफाया कतार की कोई ज़रूरत नहीं है। बहरहाल कितने हैं जो ईमान रखते हैं कि वो शफा पा चुके हैं? अपने हाथ बुलंद करें, उसकी तारीफ करें। आमीन। आप शिफा पा चुके हैं। यसु हमारे दरमियान है, वही मसीह जो यरीहो में से गुजरा, जो जकई को बनाम जानता था और जो बरतमाई को जानता था। आज रात वही खुदावन यसु पाक रूह की सूरत में यहाँ मौजूद है। वही काम कर रहा है जो उसने किए थे और कामिल तौर पर साबित कर रहा है कि वो कल और आज बल्कि अबद तक यकसा है। थियोलॉजी, अकीदों और सर्द मंत्रों को अपना गला ना दबाने दें। आमीन। मैं अपने पूरे दिल से उसका यकीन करता हूँ। आमीन। अपनी शफा को कबूल करें, कहें खुदावंद की तारीफ हो, मैं उसे कबूल करता हूँ। फिर आए उसकी हमदो सना गाते हैं। मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। क्या आप उससे प्यार करते हैं? जमात कहती है आमीन। एडिटर: क्योंकि उसने पहले मुझसे प्यार किया था। क्या आप उससे प्यार करते हैं? मैं उससे प्यार करता हूँ। उसकी हजूरी में अब उसकी सताइश करें। आपको मालूम है उसे यहाँ होना ही है। उससे प्यार करता हूँ क्योंकि उसने मुझसे प्यार किया और मेरी निजात खरीद ली। ये भी शफा है, ये आपकी निजात का हिस्सा है। आप इसे कहाँ लेते हैं? कलवरी की सूली पर। हम तमाम के दिलों में मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। वाकई उसे महसूस करें, उसकी सताइश करें, क्योंकि उसने पहले मुझसे प्यार किया और मेरी निजात कलवरी की सूली पर खरीद ली। ओ क्या आप उससे प्यार नहीं करते हैं? जमात कहती है आमीन। एडिटर: किसी दूसरे शख्स से हाथ मिलाएं, कहें खुदावंद की तारीफ हो। जब आप एक दूसरे से प्यार करते हैं तो आप उससे प्यार करते हैं। बस घूमकर किसी दूसरे शख्स से हाथ मिलाएं और कहें खुदावंद की तारीफ हो, खुदावंद की तारीफ हो। हम यहाँ मौजूद होकर खुश हैं भाई, हम खुश हैं और खुदावंद यसु की हजूरी में मौजूद हैं। आमीन आमीन। ओ बहुत खूब। पौलुस ने कहा, अगर मैं गाऊंगा तो रूह में गाऊंगा। आए दोबारा रूह में उसकी परस्तश करते हैं, आए रूह में गाते हैं। मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। हालेलुया। क्योंकि उसने पहले मुझसे प्यार किया और मेरी निजात कलवरी की सूली पर खरीद ली। ओ क्या आप उससे प्यार नहीं करते हैं? क्या वो काबिल तारीफ नहीं है? सताइश करें। काबिल तारीफ है, काबिल तारीफ है। यस्सु मेरे लिए सलामती का शहजादा, मुशीर, कादर मुतलक खुदा है वो। ओ मुझे बचाता है और मुझे सारी शर्मिंदगी और गुनाह से दूर रखता है। काबिल तारीफ है मेरा निजात दहिंदा, उसके नाम की तारीफ करो। काबिल तारीफ है, काबिल तारीफ है यस्सु मेरे लिए। वो सलामती का शहजादा है, मुशीर है, कादर मुतलक खुदा है वो। ओ मुझे बचाता है और मुझे सारी शर्मिंदगी और गुनाह से दूर रखता है। काबिल तारीफ है मेरा निजात दहिंदा, उसके नाम की तारीफ करो। अब इस वक्त खुदावंद की हजूरी में क्या हो सकता है? मैं एक बार खो चुका था, अब मिला हूँ, सजा से बरी हो गया हूँ। यस्सु मुकम्मल निजात और आज़ादी बख्शता है, मुझे बचाता है और मुझे सारी शर्मिंदगी और गुनाह से दूर रखता है। काबिल तारीफ है मेरा निजात दहिंदा, उसके नाम की तारीफ करूं। ओ आए इस तरह गाते हैं कि हमें एहसास हो चुका है। काबिल तारीफ है, काबिल तारीफ है यस्सु मेरे लिए सलामती का शहजादा, मुशीर, कादर मुतलक खुदा है वो। ओ मुझे बचाता है और मुझे सारी शर्मिंदगी और गुनाह से दूर रखता है। काबिल तारीफ है मेरा निजात दहिंदा, उसके नाम की तारीफ करो। ओ क्या ये आपको कुछ एहसास नहीं दिलाता है? आपको अंदर से हला नहीं देता है? जमात कहती है आमीन। एडिटर: ओ रफाकत, ये कैसा खूबसूरत एहसास है। मैं इस चीज़ को तमाम दौलत के तमाम अंबार जो आप इकट्ठे कर पाएं और बाकी तमाम चीज़ों के इव्ज़ भी नहीं बेचूंगा। इन सब को फेंक दो, मगर मुझे यस्सु दे दो।
او मेरे खुदाया, जी हाँ जनाब, रफ़ाकत, ओ मुसाफरत की इस राह में चलना और अब्दी बाजू का सहारा लेना कितना खूबसूरत है, ये जानते हुए कि वो यहाँ मौजूद है। ओ ये पहली नज़र का प्यार है। कुछ तो हमारे अंदर है जो पुकारता है। ओ कुछ तो है जैसे एक फवारा कुएं पर है, ढक्कन उठा दिया जाता है, फिर पानी फूट निकलता है और जितना ज़्यादा वो उछलता है उतना ही ज़्यादा ठंडा और ताज़ा हो जाता है। आमीन। ओ काबिल तारीफ़ है, क्या वो नहीं है? जमात कहती है आमीन। एडिटर, मैं उससे प्यार करता हूँ, क्या आप नहीं करते हैं? आमीन। ओ मेरे खुदाया, क्या आप एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं? जमात कहती है आमीन। एडिटर, अब आप तमाम मेथोडिस्ट पेंतीकोस्टलों से हाथ मिलाएं और आप बैप्टिस्ट लोगों से और हकीकी दोस्त बन जाएं। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो आप उससे प्यार नहीं करते हैं। ये दुरुस्त है क्योंकि वो भी उससे प्यार करते हैं और आप भी उससे प्यार करते हैं। उसने आपको आपकी खताओं में कबूल किया है, उसने दूसरे को भी ऐसे ही कबूल किया है। बस अब मुत्तफिक हो जाएं। ओ क्या वो काबिल तारीफ नहीं है? आमीन। हम अपने पूरे दिल से उसका यकीन करते हैं। ओ आएं कलीसिया के इस बेहतरीन पुराने गीत को दोबारा गाते हैं। मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसे जितना भी कह लूँ कम है, क्योंकि उसने पहले मुझसे प्यार किया। उसने मुझसे तब प्यार किया जब मैं गरीब था, देखते हुए भी अंधा था, गुनाह से प्यार करता था, एक बर्बाद शराबी का बेटा था जो गंदगी में था, तो तब वो अपने फजल में नीचे उतर आया। मेरा इससे कोई वास्ता नहीं था, उसने मुझे चुना है। ये कैसे हो सकता है? कैसे एक जड़ी बूटी एक गेहूं में तब्दील हो सकती है? इसके लिए खुदा की कुव्वत लगती है। आमीन। मैं उससे प्यार करता हूँ। ओ मैं इस घड़ी एक किस्म से अब खुद में रूहानी जोश महसूस कर रहा हूँ। मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ वो यहाँ मौजूद है। ये वही है, उसने इसका वादा किया था। वो हमारे दरमियान मौजूद है। मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। वो काबिल तारीफ है। ये जानकर आपको अच्छा महसूस होता है कि हमें मज़ीद इसके मुतल्लक अंदाज़े लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो यहाँ मौजूद है, खुद को कलाम में साबित कर रहा है, जैसे उसने हमेशा किया है कि वही है। ना कोई अकीदा और ना ही कोई अफसाना है, बल्कि जिंदा खुदा खुद है। कैसे वो खुद को अश्कारा करता है? वहाँ सदूम में नहीं करता है, बल्कि इब्राहिम पर अश्कारा करता है और अब इब्राहिम के बाद उसकी नस्ल पर कर रहा है। ये ज़ाहिर करता है कि हम इब्राहिम की नस्ल हैं। आमीन। ओ मेरे खुदाया, अब मैं वाकई बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैं उससे प्यार करता हूँ। ओ बरकतों की कैसी बरसात है। मैं उससे प्यार करता हूँ क्योंकि उसने, ज़रा सोचें, इससे पहले कि आप उससे प्यार करते, उसने आपसे प्यार किया। खुदावंद यीशु इन लोगों को शिफा बख्श दे बाप, ताकि इनमें से हर एक तंदुरुस्त हो जाए। खुदावंद, मैं तेरे जलाल के लिए यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगता हूँ। आमीन। कलवरी की सूली पर ओ आए आजिज़ी और बड़ी खामोशी से अपने सरों को झुकाते हैं। आप जानते हैं हम बहर सूरत बच्चे ही हैं, हम खुदा के बच्चे हैं। क्या आपने कभी देखा कि कैसे एक बच्चा अपने वालिदैन के आसपास आज़ाद होता है, क्योंकि उसके वालिदैन उसे देख रहे होते हैं। आए उसे गुनगुनाते हैं। भाई ब्रैनम गुनगुनाना शुरू करते हैं, मैं उससे प्यार करता हूँ। एडिटर, सिर्फ ये जानना कि वो यहाँ उस अजीम आग के सतून में खड़ा है। उसने कहा मैं खुदा से आया हूँ, मैं खुदा के पास जाता हूँ। वो लागोस था जो बियाबान में आग के सतून की सूरत में मूसा के साथ था। वो कलवरी पर मुआ और दोबारा जी उठा। और जब साउल अपनी राह पर दमिश्क को जा रहा था तो वही आग का सतून उस पर ज़ाहिर हुआ। उसने कहा खुदावन तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु हूँ। वो खुदा से आया था, खुदा के पास चला गया। कलीसियाई शहादत के वसीला, साइंसी सबूत के वसीला और तमाम बातों के वसीला हमारे साथ शनाख्त हुआ है। अपनी वही बातें वजूद में ला रहा है, अपने कलाम का इजहार कर रहा है। वो खुद तर्जमान है,
भाई ब्रैनम गुनगुनाते हैं, मैं उससे प्यार करता। एडिटर, क्या ये घड़ी उसके आने के लिए हैरत अंगेज नहीं होगी कि आसपास देखे और हर एक को तब्दील होकर उड़ते हुए देखे। किसी वक्त वो देखेगा। भाई ब्रैनम गुनगुनाते हैं, मैं उससे प्यार करता हूँ। एडिटर, अब आए अपने सरों को झुकाते हैं और धीमे से गाते हैं। भाई ब्रैनम गुनगुनाते हैं, मैं उससे प्यार करता हूँ। एडिटर, सुबह की इबादत को याद रखें और अगर आप यहाँ अजनबी हैं और आपका कोई चर्च नहीं है तो यहाँ बेहतरीन पास्टर हैं और ये इसी अंजील का यकीन करते हैं, वरना ये मुझे यहाँ ना बुलाते। आपको इनके चर्चेज में आने के लिए खुश आमदीद कहते हैं। कल एक बेहतरीन इबादत में शरीक हों और आज रात एक अच्छी नींद सोएं और फिर दोबारा कल दोपहर को शफाया इबादत के लिए आएं। भाई ब्रैनम गुनगुनाते हैं, मैं उससे प्यार करता हूँ। एडिटर, ठीक है भाई, खुदा आपको बरकत दे।